Yeah, so the moment we see anyone or we sit with them for some time, we actually get to know which planet is weak, and that's when we start, you know, that's when the remedy starts to pop up as a astrologer or Vastu consultant also. So we have to first be a good listener, just listen and understand what their actual need is, and uh, it's like it's like a blood report that if we see that our okay vitamin D is low, we take the pill, vitamin D pill. So similarly in astrology also, if we want to really build the newness in us, or even to get the best out of our mool nature, or even if we have to change our the mool nature, that is the prakriti jo apni rehti hai, if we have to change that, first we need to understand that where the weakness lies. That's why this astrology is very helpful, and learning astrology just to understand your chart, your family members' chart, also helps us in mm, uh, changing our habits and changing our not good habits. I mean, good habits are good, just that how we can improve on our good habits also. So, keeping yesterday's topic intact, I have created this whole pattern building today. I just finished it sometime 5 minutes back. So if there are mistakes in it, just ignore. Huh? We'll just start the class. So Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Jai Shri. So these planets itself, if we see the look of it, the sun, the moon, they are very interesting. And the more we read about these planets, the more we get insight on uh, how every human being is different, how every house is different. So that brings us to understanding how the patterns are. Patterns are nothing but it's like, numbers are also a pattern, or anything we see in happening in a similar fashion is also a pattern. Milky Way is a pattern, or our galaxy is a pattern. So everything in this universe has a pattern. And things which don't have a pattern, even the asteroids moving around yeah, I mean, our belt is also has pattern. So just going forward with this pattern thing. So like this is our pattern, if we see planets, if consider planet and our old pattern, and how we want to change the old pattern and bring to the new pattern. So planet wise, I have made the bifurcation. So why planet wise? Because it's like that there's this phrase, no, yatha pindit yatha brahmande. So we kind of, Yatapinde, Brahmande. yeah, so Yeah. we are a replication of what is outside. There is so much more, but just for our understanding, we just take Milky Way. The moment we it's see, all these subjects are like a bridge. You cross one bridge, then you don't need the old bridge, so you just move forward. Then again you have to cross a new bridge. So all these remedies that we give, or any of these rituals that we do, if you observe it carefully, once you complete one Purush Charna or any sadhana ka 40 days, if we ask you to do the same thing again,
you will not have that kind of zeal to do the whole thing again. It will not be that. It will not have that kind of impact in your mind. So that's why we always need a new bridge every time to cross. So that's why we have to make our journey much more tougher. The more uh, we get at ease, the more uh, downfall happens. So sometimes we feel no that अरे बाप रे थक गए करते करते, but actually speaking, the more you grow, the tougher the journey gets, you know. It's like a mountain peak because initial base camp is always easier, but if you have to climb the peak, it's the toughest. So same thing happens in these understanding of these scriptures also. So if you read my book, for example, it's Pitham. It's very simple. Then Vastu remedies, it's little more complicated than. But if you go to scriptures, it's much more complicated. And then you finish my books, and then the scriptures, and then you read the Purans, and then you go to the Vedas. That then it's easier. The path is easier. So similarly, even in these astrology planets, we have to understand what sun is all about or what moon is all about, or and if we understand the basic nature of sun, moon, Mars, because all these things are there in our body also, and the Rishi Munis have actually given characteristics to each planet and similar pattern in our body. So that's why it's easy for us to refer to astrology and change our habits. So here, if we see Sun is the most important planet in astrology and Vastu. So east direction is the most important, as per the remedy if we have to do, because that's this health zone. And so if we see who somebody's nature is like they're always seeking validation or anything, then we understand that okay, this person's sun is weak. That like what is validation seeking? It's like अरे ये अच्छा लग रहा है ना मेरे पे, अरे ये मेरी किताब अच्छी लगी क्या आपको, अरे ये अच्छा लगा क्या? I mean, you're always asking others to validate your whatever you do in life. So then we know, okay, sun pe problem hai, so we need to start working on our sun. And what happens when we work on our sun? We get the the thing, the self-respect for us is getting stronger, and it gets stronger. And that's how we know that okay, sun is getting better. Now how do we make this sun better? So in the other slides I have given the remedies also, but first I want you to understand that suppose if you have a weakness, then we need to first pinpoint that which planet has this kind of weakness. Suppose somebody has emotional dependence, that अरे आपने फोन नहीं किया, आप आए नहीं, आपने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, and somebody is messaging continuously, so that we get to know that okay, this person is having emotional dependence or emotionally weak, and we know that okay, this person's moon needs to be worked upon. Same thing, if the person's moon is strong and there is a lot of emotional stability in that person, and we know that okay, इनका चंद्रमा बहुत strong है, तो if the person's chandrama is already strong, then we don't need to work on the moon zone, the northwest zone in the vastu. But if it is, then we really need to work on the northwest zone. So sun and moon are most important. So always, if you don't get to understand what this karmic debt is, what Rahu is, what Ketu is, and what Shani is, like what yesterday's lesson, just ignore and just work on their sun and moon, provided they are weak. So how do we know whether it's weak? So we know that okay, if they're seeking validation,
then we know that sun is weak, or if they are emotionally dependent. Most of the time ladies have this problem because of, again, their ovaries and the menstrual cycle and all that. So that's why we see that we see that ladies have more of emotional dependence, which is more in India rather than, Western world. So yeah, going forward to Mars. Now, Mars, if somebody is always getting angry, and if they are too reactive, the moment you say something, they react, and then we know that okay, इनका Mars में problem है, and what is required to be done? That they need to have a disciplined action. Disciplined action is something like something that you maintain discipline, like gym jana hai to gym jana hai, and that kind of discipline. And it's like not overdo of gymming and not overdo of anything. So there has to be a balanced, disciplined action. So this is these three planets. Then comes Mercury. If person is always confused, अरे पता नहीं क्या करूं, ये करूं, वो करूं. So okay, we know that oh, this इनका इस person का Mercury weak है, इनका Mercury पे काम करना पड़ेगा. This helps when we are actually, help, for our kids, especially when we have to see that our kids are having this problem of confusion, ये वो उनको clarity देनी है. तो अब lecture देंगे तो these kids they don't want to listen to the long lectures. तब अपने उनका मर्क्यूरी का उपाय कर दें, देन अपने आप वो थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है. So similarly, Jupiter का है that there is, if there is lack of wisdom, अच्छा, I mean we see no that अरे we don't want to read anything, we don't want to read, ये reading is so boring, ये वो, then we understand that अच्छा, इनका Jupiter पे काम करना पड़ेगा. So that's why we ask everyone to read, because Jupiter is the biggest planet, biggest मतलब साइज में. सो अगर जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत नॉलेज आती है, एंड थ्रू नॉलेज वी द पर्सन calms down, and they understand things better. So for higher understanding, Jupiter is required. इसीलिए जुपिटर का उपाय इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट नीड्स बहुत बड़ा उपाय. जस्ट लिटिल उपाय से जुपिटर काम नहीं करता, बिकॉज इट्स लाइक एन एलिफेंट, बहुत ज्यादा फीड करना पड़ता है. So that's why Jupiter generally we come in the end only, Vastu में. And then Venus is what people long for. सबसे ज्यादा अपने पास लोग आते हैं वीनस के लिए, भाई पैसे नहीं है या. So how do we know whether? So always try to see and talk to the person, and try to. That's why this catharsis is very important. Even in our Vastu consultation, we have started this the first session of catharsis, that you first talk to the consultant, and then we try to understand where the problem lies, and then we recommend them that चलो ये इनको ये वाला प्लान चलेगा, या इनको दूसरा प्लान या तीसरा प्लान, इस तरह से. Understood there, Dhwani ji and Jayashree ji, why I have started with this catharsis one. Yes, Yeah, ma'am. yeah. Catharsis really works beautifully actually to understand your client and his needs. Yeah, so now after this class, it will be easier for you to tell them that you don't have to ask me कि मैम कौन सा प्लान दे. You have to decide इनके लिए ये प्लान सही रहेगा. So first, it's very important to understand your client's current pattern, कि अभी मतलब ये old pattern का मतलब मेरा हुआ कि current pattern क्या है. तो अगर दे आर टू अटैच टू देयर थिंग्स एंड फैमिली एंड मतलब देयर थिंग्स, एंड दे डोंट वांट टू डिस्कार्ड देयर ओल्ड थिंग्स, आप उन्हें बोलो आप पुरानी चीजें फेंक दो, पर कैसे फेंकू, एंड देन आई कांट थ्रो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये वो. तो मोमेंट दे से दैट वी नो, अरे इनका तो वीनस में गड़बड़ है. तो immediately the brain goes कि चलो इनको वीनस का वो देना पड़ेगा. So this is how, for me it doesn't take time. किसी को मैं कुंडली देखती हूँ, and within moments I know that इनका क्या करना है. ठीक. So I want you guys to also, get that understanding. So ये pattern building का will really help you. एंड अब किसी का बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप है, बहुत कॉर्डियल है सब, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ, तो वी नो दैट अच्छा चलो इनका वीनस बहुत अच्छा है.
So this is how we understand the Venus planet. Now going to Saturn. जब अब अभी करंट मार्केट सिचुएशन देखें तो जो अपनी वास्तु को सैटर्न बना दिया गया है. पीपल आर सो स्केर्ड ऑफ वास्तु. वास्तु से ये है मेरा, वास्तु से एक्सटेंशन है, वास्तु से नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है. एंड तो इससे क्या हो रहा है ना, पीपल आर लिमिटिंग देयर ग्रोथ. दे आर नॉट एबल टू फ्लाई हाई बिकॉज दे हैव सो मेनी फियर्स इन देम कि मेरा तो ये वास्तु गड़बड़ है यहाँ ऐसे. गड़बड़ कुछ नहीं है. गड़बड़ इज इन द माइंड. 90% ऑफ द टाइम वास्तु दोष होता ही नहीं है. अगर आप अच्छे से सो रहे हो, आपकी जगह आप अच्छे से पूजा कर पा रहे हो, उससे ज्यादा वास्तु क्या चाहिए. बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो वी नो दैट चलो इनका सैटर्न पे काम करना पड़ेगा अपने को. तो उनको अपने को सैटर्न की रेमेडी देके, देन सैटर्न की रेमेडी जब अपने देते हैं, that is when slowly after a year you'll see that they are much more disciplined and they get mastery over something. कि हाँ, मतलब कोई एक चीज पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है. तो इसी से हमें पता चलता है कि भाई पीपल कम ना कि मैं हम क्या करें, हमारे लिए क्या करियर अच्छा रहेगा. तो वी सी द सैटर्न कि सैटर्न कहाँ है. तो वो सैटर्न जिस घर पे रहता है ना, उस चीज का अगर वो मास्टरी करेंगे, मतलब उस चीज पे अगर वो काम करेंगे तो उस चीज पे उनकी मास्टरी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज सैटर्न 6th हाउस में है तो हम कह सकते हैं कि सर्जरीज में या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उनकी मास्टरी हो सकती है. किसी का मतलब सैटर्न अगर अकॉल्ट साइंस में है तो उसमें उनकी मास्टरी हो सकती है. तो और डिसिप्लिन ऑफ कोर्स, विदाउट डिसिप्लिन देर इज नो मास्टरी. तो सैटर्न का काम ही यही है कि पहले वो डिसिप्लिन सिखाता है आपको, उसके बाद में वो अपने को उस चीज में मास्टरी देता है. तो देखते हैं आगे और कौन है. हाँ, तो वही है, पैटर्न बिल्डिंग से अपने को प्रॉब्लम पता चलती है एंड देन अपने उस पे सोल्यूशन पे काम करेंगे. तो अब राहु का क्या है. जहां राहु है दैट पर्सन इज दैट वो घर ऑब्सेस्ड है. सपोज राहु 1st हाउस में है तो दैट पर्सन वी से उसकी पर्सनालिटी से वो ऑब्सेस्ड है कि मैंने ये कर लिया. मैं 1st हाउस वाला राहु ऐसे करेगा, 2nd हाउस वाला राहु करेगा पैसे पैसे पैसे, 3rd हाउस वाला राहु अपने भाई बहन से लड़ेगा या उसके शॉर्ट ट्रिप्स बहुत होंगे. 4th हाउस का राहु में लाइक उनके बहुत दे हैव ह्यूज डिजायर ऑफ प्रॉपर्टी, ये वो, मतलब किसी के बहुत प्रॉपर्टीज हो तो भी अपने 4th हाउस का राहु कह सकते हैं बिकॉज ऑफ 4th हाउस राहु. So Rahu is about obsession, but वो obsession in a way it's good. It helps you grow. You need that obsession for your growth, but it also creates a lot of illusion. तो वो obsession एक रास्ते में नहीं लेके 4 रास्ते में हो जाता है. That is where we need to understand our clients' need that okay, they are going in 4 directions, we need to bring them to one single direction. तो वो उससे क्या होगा ना कि सोचो 4 रास्ते में वो नदी का उतर जा रहा है, वो एक ही रास्ते में हो जाए तो वो नदी कितनी पावरफुल हो जाती है. करेक्ट. तो वैसे ही राहु की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है. तो उसको अपने को एक ही रास्ते में फोकस, अम्बिशन लेके एक ही रास्ते में उसको लगाए ना कि भाई तू ना इधर जा भैया, ना तू इधर जा, बस तू सीधे रास्ते चलता जा. तो राहु उनको बहुत सक्सेस दे सकता है. तो एक्सट्रीम सक्सेस का भी कारक होता है राहु. तो अब चलते हैं केतु पे. केतु इज एस्केपिज्म. अपने को लगता है ना कोई एस्केप, अरे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, भागता रहता है अपनी चीजों से. तो जहां केतु बैठेगा वो बंदा उसी चीज से भागेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस में मेरे केतु है तो मेरे आई आई स्टिल डोंट हैव अ हाउस. मेरे पास मतलब आई जस्ट वांट टू स्टे इन अ रेंटेड हाउस, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर मैंने घर खरीद लिया तो मैं उस वो घर मुझे बांध लेगा. फिर अगर बाई चांस मुझे कहीं और शिफ्ट होना है तो आई कांट मूव. तो वो केतु क्या है ना, एस्केप कराता रहता है आपको. तो अब 4th हाउस का मेरा केतु है, मुझे वो घर से एस्केप करा रहा है. किसी का 1st हाउस में है तो उन दे विल वो अपने आप से भागेंगे, वो अपनी वीकनेस या कोई चीज वो अपने आप को देखना ही नहीं चाहते. सो दैट इज व्हाट केतु डज. 2nd हाउस का केतु रहेगा, उनके उनका क्या रहेगा ना कि वो लोग के प्रॉपर्टी आ रही है पर उनके हाथ नहीं लग रही है, प्रॉपर्टी उनके हाथ नहीं लग रही है.
और ऐसे थर्ड हाउस का भी केतु है तो वो भी ऐसे ही करता है कि मतलब मतलब भाई बहन हैं पर उनसे डिटैच रहते हैं, है लव है पर दे विल स्टिल बिहेव लाइक अ डिटैच्ड पर्सन। तो जो प्लैनेट जिस घर में रहता है ना वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेता है। तो इसीलिए राहु है ऑब्सेशन, बट किस चीज से है वो हमें पता चलता है जब वो उसके घर में, उस जिस घर में वो रह रहा है। वैसे ही केतु का है। अब केतु अगर सेवेंथ हाउस में है तो वो अपने पार्टनर से डिटैच रहेगा। पार्टनर बोलेगा ये कर दो भैया तो वो बोलेगा हाँ 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 बाद में करता हूँ, और करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो इस तरह से एस्केपिज्म रहता है। और स्पिरिचुअल विजडम जितना केतु दे सकता है वो और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता, बिकॉज हेडलेस है। अगर वही आप बिना बुद्धि की चीज स्पिरिचुअलिटी में लगा लो तो यू कैन रियली सी भगवान एंड अचीव। आई मीन किसी को भगवान नहीं देखना बट उनको स्पिरिचुअल विजडम चाहिए तो वो अचीव हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज पैटर्न बिल्डिंग ऑफ ईच प्लैनेट। यस ध्वनि जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ, गुरु मैं ये पूछ रही थी कि अगर कोई बहुत डिफेंसिव है, जैसे कुछ भी कर रहा है और कोई अगर बोल रहा है उनको कि ये ठीक नहीं है, तो दे रिएक्ट डिफेंसिवली ना। तो हम्म। ऐसे केस में क्या क्या कह सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट पे वर्क करना चाहिए? डिफेंसिव है और इमीडिएट रिएक्ट कर रहा है मतलब मार्स है। हम्म। मार्स अफ्लिक्टेड है क्योंकि रिएक्शन कम्स फ्रॉम मार्स। इसका मतलब अब मार्स है टॉप लेवल पे, तब रिएक्ट कर रहा है, वो थोड़ा बैलेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे उनको काम करना है क्योंकि रिएक्टिव है, यानी कि नेक्स्ट हम्म। उन पे काम करना पड़ेगा कि उनके जो इमोशंस है उसको पहले बैलेंस। मतलब दैट मीन्स दैट पर्सन हैज सो मच ऑफ विष्णु ग्रंथीज, हम्म। इमोशनल बैगेजेस, जो मे बी दैट पर्सन डज नॉट हैव एनीवन टू टॉक टू। वो जर्नलिंग भी नहीं करते तो उनके पेट में ये सोचो कि इतना इमोशंस का ना कचरा भर गया है, वो वॉमिट ही नहीं कर पा रहे इमोशंस उन फिर वो ऐसे हम्म। जो एक वेल होती है ना उसके एक वो एक साल में एक बार अपना पूरा कचरा निकालती है ना एक बड़े बॉल के जैसे। हम्म। वैसे ही उनको फिर वो जब उनका जब निकलता है तो वो गुस्से में निकल जाता है। हम्म। तो सो टॉप लेयर, इसमें लेयर्स होते हैं करेक्ट। एक बार में तो कुछ होगा नहीं। तो टॉप लेयर में मार्स आया, फिर वो सेकंड लेयर में मून आया, फिर थर्ड लेयर में थोड़ा बहुत सन आया। फिर इस तरह से ना लेयरिंग होती है। हम्म। तो बट हाँ मतलब फर्स्ट ऑब्वियसली इफ यू वर्क ऑन द टॉप लेवल फिर धीरे धीरे नीचे के लेयर्स निकलते रहते हैं। प्याज की तरह है ना, वी ऑल आर लाइक अनियंस। एक लेयर निकला दूसरा फिर तीसरा। तो ये वाला जो पैटर्न वाला है ना ये बहुत इसका इसका एक्चुअली व्हाई आई हैव एक्चुअली extended this class because I'm writing a book, journal for the VVL, उनके लिए एक मैं जर्नलिंग कर रही हूँ। आई मीन जर्नलिंग नहीं कर रही, आई मीन एक बुक निकाल रही हूँ जर्नलिंग पर। तो उसमें आई एम गिविंग दीज प्लैनेट्स एंड द एस्ट्रोलॉजी उपाय एंड द वास्तु उपाय। सो लाइक एवरी डे आपने क्या वास्तु का उपाय किया या एवरी डे आपने कौन सी ग्रंथि खोली ना। सो इसीलिए आई थॉट कि मैं सिंस कर ही रही हूँ तो मैं आई कैन एक्सटेंड दिस नॉलेज, आई कैन शेयर दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ यू, तो मेरे भी क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती है। सो दैट्स द रीजन ये एक्सटेंशन मैंने किया एस्ट्रोलॉजी का। तो यहाँ तक कोई मतलब कोई डाउट एनीवन? So how do we give remedy for Ketu then, when depending on the house? हाँ तो वी वील गो फॉरवर्ड एंड वील अंडरस्टैंड, Okay, fine. है ना। हाउसेस का कल सीखेंगे। आज हम सिर्फ इन प्लैनेट्स को देख रहे हैं। सो कल हाउस वाइज देखेंगे कि इसका रेमेडी कैसे देना है, इसका रेमेडी कैसे देना है। लाइक जो कल वाला क्लास रहेगा ना, 3 क्लासेस है ना, तो आज का क्लास है एवरी प्लैनेट वी विल अंडरस्टैंड कि ये इसका पैटर्न ऐसे बिल्ड होता है इसका। तो एक बार आप किसी पर्सन में पैटर्न देखना सीख जाओगे ना, बिकॉज वी ह्यूमन ये बॉडी तो इज जस्ट अ बॉडी ना, वी आर मेड ऑफ दीज पैटर्न्स, वी आर अ लाइट। और उस समझो वो चित्त है सेंटर में, चित्त चित्त मतलब
मेन अपनी जो आत्मा या जो लाइट बोल दो, वो लाइट एकदम प्योर है, सबकी सबकी प्योर है, लेकिन ऊपर में जो पैटर्न लेयर्स बने हुए हैं वो ये सब चीजों के हैं, और उनको जो वीक लेयर्स हैं उनको भी निकालना है, जो स्ट्रॉन्ग लेयर्स हैं उनको भी निकालना है, सो दैट न्यूट्रल आ सके अपने। क्योंकि ऑब्सेशन भी ठीक नहीं है और डिटैचमेंट में तो ना राहु ठीक ना केतु ठीक, इनको सेंटर में लाना जरूरी है। तभी जो सेंटर है ना, जो जो मैं चित्त बोल रही हूँ सेंटर, वो एक्चुअली में सूर्य है, सन है। इसीलिए कौन से पराशर होरा शास्त्र में सन को आत्मा कहा है। तो अगर अपने सन पे काम करते हैं ना, we can start with the sun remedy, but it is an endless thing, वहां से रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए आपने देखा होगा मैं ईस्ट की रेमेडी जल्दी से देती ही नहीं हूँ, क्योंकि रिजल्ट नहीं रहता, समझे? क्योंकि इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच द इनर मोस्ट लेयर। तो इनकी भी ना, प्लैनेट्स की भी एक लेयरिंग है, दैट आई टेक इन टुमारोज क्लास, कि ये लेयरिंग अपने को रिजल्ट देने के लिए कैसे काम आएगा। तो I'll just note down layering and, ठीक है, लेयरिंग एंड हाउसेस। तो यहाँ तक कोई डाउट और? नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स, नो डाउट्स। आगे चलते हैं। सो नाउ पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। हाँ, ये मैंने क्या किया ना, इसका मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। तो ये मैंने स्वामी जी से सीखा। आई मीन नॉट, वो हमें हमेशा बताते हैं 60,000 थॉट्स आते रहते हैं। अब वो थॉट को, एक थॉट आया, उसी पे अगर 60,000 थॉट्स में से एक थॉट को पकड़ लिया और उसी पे अपने 4-5 बार सोचते रहे, और उसमें थोड़ा सा इमोशन, इट्स लाइक अ रेसिपी कि थॉट आया, उसमें इमोशंस को मिक्स किया और उस पे एक्शन कर दिया, तो वो हैबिट बन जाती है। और हैबिट बनने पे पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न बनने से वही अपनी डेस्टिनी हो गई। कुछ समझ में आया? हलवा, ये हलवा है बेसिकली। हैंड्स अप। मतलब सॉरी मैंने बीच में इंटरव्यू किया, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया और मैंने उसको भी सोचना शुरू किया और फिर मैंने उसको वो नेगेटिविटी स्प्रेड करनी शुरू की, तो वो मेरी हैबिट बन जाएगी। और फिर मतलब आई विल कीप स्प्रेडिंग दैट नेगेटिविटी अराउंड, एंड वो फिर आई अट्रैक्ट द पीपल, द नेगेटिव पीपल टुवर्ड्स मी। हाँ, फिर वो आपका नेचर बन जाएगा। फिर राइट। नेचर बनते 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 वो आपकी प्रकृति बन जाएगी, है ना? बिल्कुल सही। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो अब यही फॉर्मूला अपने ने बनाया है, तो अपने को इसका भी रिवर्स ऑर्डर सीखना पड़ेगा, करेक्ट? ताकि अपने वो डेस्टिनी ना बने। सो नाउ द प्लैनेट सिंपली शोज विच पैटर्न, है ना, विच पैटर्न इज रनिंग ऑन द ऑटो पायलट। तो अब मैंने आपको कहा ना, हेडोनिक अडेप्टेशन है। तो मेन मूल प्रॉब्लम हेडोनिक अडेप्टेशन का है कि एक माइंड ऑटो पायलट पे रन कर रहा है, और अपने को लग रहा है कि अ, वास्तु की प्रॉब्लम है, या एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है, या स्टमक की प्रॉब्लम है, या मतलब आप देखो ना, आप बाई चांस आप गिर रहे हो, तो आप एक बार नहीं गिरोगे, 4-5 बार गिरोगे, क्योंकि वो एक वो मूल नेचर बन जाता है, उसी को ही पैटर्न कहते हैं। तो कुछ बड़ा हादसा होने से पहले छोटे छोटे हादसे होते हैं। तो उस छोटे छोटे पैटर्न से ही अपने समझ जाते हैं, समझना अपने को पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दीज थिंग्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, कि हम छोटे में ही पकड़ लें, तो हम बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला है, हम वहां तक माइंडफुली रीच कर सके। तो जब ये छोटे पैटर्न ही दिखने लग जाएंगे ना, तब अपने अपने को बड़े पैटर्न को अवॉइड करना बहुत इजी हो जाता है। तब अपने कह सकते हैं कि हाँ, मतलब ठीक है ना, वी कैन टेक अप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ये पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप किस चीज का रैंडमली कुछ रेमेडी दोगे तो यू विल ऑल्सो नॉट बी सेटिस्फाइड, करेक्ट? तो इसीलिए ये जब ऑटो पायलट में माइंड चला जाता है, तब अपने को उस कंफर्ट जोन से उसको बाहर लाना है।
फॉर एग्जाम्पल अब कोई मोटा हो रहा है तो उस वो जिम जाना ही नहीं चाह रहा, तो अपने उसको बोलेंगे भाई आप चलो जिम मत जाओ, आप घर पे ट्रेडमिल लाके उस पे वॉक करो। फिर आप नेक्स्ट उसको बोलोगे चलो नीचे अपार्टमेंट में जिम है उसमें चले जाओ। फिर आप बोलोगे अरे पास में कल्ट है उसमें चले जाओ। तो धीरे 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 वी हैव टू गेट दैट पर्सन आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। तो उस कंफर्ट जोन से जैसे ही अपने बाहर लाएंगे, तो वो जो माइंड ऑटो पायलट में चल रहा है वो, तो अब जो सक्सेसफुल बुक्स है फॉर एग्जांपल, और ये एटॉमिक हैबिट्स है, वो हैबिट सक्सेस, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेस, ये वो, दे हैव गिवन अस हाउ टू वर्क। वही सेम चीज अपने एस्ट्रोलॉजी वास्तु में ऋषि मुनीज ने दिया। बट इफ वी टॉक इन आवर एस्ट्रोलॉजी या वास्तु लैंग्वेज, द the so-called modern world calls it a superstition. And so how you put yourself across and change the habit of your client and bring them out of this autopilot mode, जब चेंज आता है ना, दैट इज व्हेन अपने कह सकते हैं हाँ चलो आप तब लोग कहना शुरू कर देते हैं भाई मैम हमने ये आपका अप्लाई किया, बहुत हमें काम किया। तो वी हैव टू रीच दैट लेवल, और वो लेवल अपने को पुराण पहुंचा देते हैं, क्योंकि स्टोरीज के थ्रू पुराण अपने ब्रेन में ना वो चीज इम्बाइब कर देता है, which is easier way. I mean, maybe you can find a better, easier way than me. Maybe for me Purans worked, but सबका अपना अपना तरीका है। तो here again I am sharing my way of doing consultation, which has actually given tremendous results to people. तो ये आपको छोटी छोटी पैटर्न सीखनी पड़ेगी, लोगों की पकड़नी पड़ेगी, और वो पैटर्न आप सिर्फ ये इनके थ्रू इजीली पकड़ सकते हो, प्लैनेट्स के थ्रू। तो उसके लिए क्या है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है अपने आप में कि हाँ भाई चलो मैं मोटा हो रहा हूँ, तो अवेयरनेस है कि हाँ मैं मोटा हो रहा हूँ, आलसी हूँ। तो उसमें एक नया एक्शन डाला कि चलो मैं जिम जाऊंगा। उसी जिम को हैबिट बनाने, रेपिटेशन करना पड़ेगा। सो जब ब्रेन में रेपिटेशन होगा, वो प्रोक्रास्टिनेशन जो आदत है वो हटेगी, एंड उसमें एक नया पैटर्न आएगा कि भाई ये तो रोज जा रहा है जिम, रोज जा रहा है, तो नया पैटर्न आया। तो उसकी नई डेस्टिनी क्या है कि वो थोड़े दिन में पतला हो गया, 3 महीने में। वैसे ही फूड हैबिट में करते हैं कि भाई अवेयरनेस है कि मैं बहुत कार्ब्स खा रहा हूँ, तो नया एक्शन आपने क्या लिया कि भाई हर हर मील में आपने देखा कि मेरे कहाँ पे कार्ब्स हाई हो रहा है। तो आपने समझो सैलेड स्टार्ट किया, हर मील में आप पहले सैलेड खा रहे हो और उसी को आप रिपीट कर रहे हो 21 डेज, जो आई मीन आजकल बहुत पॉपुलर हो रखा है ना, 21 डेज में यू चेंज योर हैबिट। तो आपने वो रेपिटेशन किया। जब रिपीट करते हैं एक ही चीज को, तो ब्रेन नया न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बना देता है, नया न्यूरॉन्स का एक लंबी लाइन सी बना देता है आपके ब्रेन में, वो नया पैटर्न हो गया। फिर आप देखोगे कि आप हेल्दी हो गए, आपके तो घुटनों में दर्द नहीं है, आपके ये दर्द नहीं है, बिकॉज आपका वो आपने सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की। तो लाइक स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने एक पैच पहना था। तो नॉट दैट कि मेरे को डायबिटीज है, बट टू अंडरस्टैंड कि मेरे बॉडी में ऐसा क्या चीज है जो मुझे स्पाइक दे रहा है। तो मुझे पता चला रोटी से मेरी स्पाइक हो रही है, और बाजरा की रोटी से मेरे स्पाइक हो रही है, रागी रोटी से मेरे बहुत स्पाइक हो रही है। तो मैंने मेरे रूटीन से ये 3 बिल्कुल हटा दिए। तो अब ये रिपीट 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 किया, तो आई लॉस्ट 5 kgs वेट लाइक इन 3 वीक्स। तो इस तरह से, और मेरी नई डेस्टिनी क्या है कि हाँ भाई मैं आई एम मच हेल्दियर एंड अ थिनर पर्सन। सो ये तो एक एग्जाम्पल है ना, मोटे पतले हेल्दी का। सेम थिंग यू कैन डू विथ योर गोल्स, लाइक यू कैन हैव कि भाई मैं $100 million कंपनी कैसे बनानी है। तो अभी अगर आप ये फॉरेन वाले जो भी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स देखोगे ना, सो दे 100 million के लिए वो लोग एक बताएंगे ऐसे करो, ये करो, वो करो। वो सेम चीज भी अपने स्क्रिप्चर्स में भी है, बट इज दिस दैट वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड सो मच कि वो जब वो कोई चीज बोलते हैं तो दैट इज लाइक ऑ फॉर अस। एंड हम जो बोले स्क्रिप्चर के थ्रू, तो दैट बिकम्स थोड़ा सा कि बैकवर्ड है।
तो उसी को आपको अपने क्लाइंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो स्क्रिप्चरल भी लगे एंड वो एक मॉडर्न कंसेप्ट भी लगे, बिकॉज वी आर न्यू इंडिया, है ना? So that's what I do with my books. So this is, like I said, this is how I have developed these theories. I mean, of course, they are from the scriptures, but I want you to apply them so that you also see the changes in your clients. और आपका भी भाई अच्छा हो, रिपीटेड लोग आए, तो वो रिपीटिशन करना बहुत ज़रूरी है. सो ना ये थ्योरी में क्या हुआ, दिस ऑल्सो कनेक्ट्स ब्यूटिफुली विथ मॉडर्न न्यूरो साइंस. एक्चुअली इट कनेक्ट्स. अपने को वही ढूंढना है कि अब हेडोनिक अडेप्टेशन है. मैंने तो किसी में इंडिया में अभी तक किसी को नहीं सुना ये टर्म यूज करते हुए. तो अपने को नए नए टर्म्स जो, व्हाट हेल्प्स मी इज आई रीड अ लॉट हार्वर्ड की क्या रिसर्च आई, बिकॉज आई नो दैट पीपल मॉडर्न वर्ल्ड की कोई चीज़ लेके आते हैं तो पीपल काइंड ऑफ रिलेट विद इट. तो मैं, चलो ये हार्वर्ड की रिसर्च ये कहती है, तो वो चीज़ अब मुझे इंडियन स्क्रिप्चर्स पता है, आई हैव रेड देम बहुत डीपली. नया मैं टर्म कोई हार्वर्ड से लेके आती हूँ या स्टैनफोर्ड की, एक ऑक्सफोर्ड की, ये तीन मेरी फिक्स है रिसर्च की. ये तीन में से एक टर्म लिया, फिर उस वी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म क्या है, एंड देन मैं उसको फिर कोई स्क्रिप्चरल वर्स से कनेक्ट कर देती हूँ कि भाई भगवत गीता में भी ये है. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट ने कहा, इट्स नॉट मी, इट्स योर फेथ दैट हील्ड यू, है ना? इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्स. बट वो सेम चीज भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गीता में भी कहा है कि भाई, हाँ, श्रद्धा लभते ज्ञानम. तो मतलब you if you want to survive in this competitive market, you will have to bring the modern science and the ancient scriptures together. तब जाके अपने जो पुराने ग्रंथ हैं इनको अपने वापस मतलब जागृत जागृत तो है ही, बट टू द यंग जनरेशन इजीली ला सकते हैं. तो अब हर चीज अगर आप देखोगे ना, तो मॉडर्न न्यूरो साइंस के साथ में बहुत अच्छे से अपने अडेप्ट कर सकते हैं. तो व्हाट हैव आई रिटन हियर, दिस आल्सो कनेक्ट्स ब्यूटीफुली विथ मॉडर्न न्यूरो साइंस एंड हेडोनिक अडेप्टेशन. व्हेन द ब्रेन रन्स एन ओल्ड पैटर्न, लाइफ फील्स रेपिटेटिव. ऑब्वियसली कोई चीज उसी रास्ते से जा रहे हैं तो सेम रास्ता कितना बोरिंग हो जाता है. तो न्यू कॉन्शियस एक्शंस क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज. अब नया रास्ता लेंगे, नई चीज दिखेगी, नए प्लांट्स दिखेंगे, नए फ्लावर्स दिखेंगे, तो उस दिन आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, बिकॉज आपके ब्रेन ने नई नई चीजें देखी, तो नए हार्मोन्स रिलीज हुए. तो न्यू कॉन्शियस एक्शंस क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवे. तो नया पाथवे बना. अब वो नया पाथवे में आप उस टाइम हैप्पी हो, आपने हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन और ये सब ज्यादा रिलीज किया, तो यू विल फाइंड अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट कि भाई, अरे मैं तो नया रास्ते से गया था, उसमें तो बहुत ही मजा आया. उसी रास्ते से आप 10 बार जाओ, फिर 11th टाइम आपको मजा नहीं आएगा. सो इसीलिए हमें बार बार रेमेडी देनी पड़ती है कि एक बार रेमेडी कर ली तो इट्स नॉट इनफ. सो मतलब जो मेरी फर्स्ट बुक में है, विश्वकर्मा प्रकाश में, वही मेरी 10th बुक में भी है, बट स्टिल मेरी ऑल बुक्स सेल वेरी वेल. मैं एक ही चीज को 10 तरीके से बता रही हूँ, बट लोगों को क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि नई डिजाइन होती है, नए टर्म्स होते हैं, पर है एक ही चीज. तो सेम थिंग यू हैव टू आल्सो डेवलप विथ योर सेल्फ कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे नई नई रेमेडीज दोगे. और वो रेमेडी देना बहुत इजी हो जाता है व्हेन यू अंडरस्टैंड द रूट्स कि इसका एक्चुअल में ना सोर्स कोड क्या है. तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ अ सोर्स कोड ऑफ ईच प्लैनेट. कि आपने सोर्स कोड समझ लिया तो आपको आगे रेमेडी बताना बहुत आसान हो जाएगा. तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी शोज द पैटर्न. वास्तु, अब एस्ट्रोलॉजी से अपने ने क्या देखा कि भाई ये बंदा इसका पैटर्न क्या है, ये पिछले जन्म से क्या लेके आया है, इसको गुस्सा ज्यादा आता है, ये इमोशनली वीक है, ये है वो है. अपने ने एक पूरी उसकी कुंडली बना ली कि ये ऐसा है. फिर वास्तु से अपने उसको, जो एनवायरनमेंट है उससे अपने उसको सपोर्ट देते देते हैं कि भाई नॉर्थ वेस्ट से ये है, साउथ वेस्ट से ये है, नंदी लगा लो, ये कर लो. एंड फिर जो बट कॉन्शियस एक्शन चेंजेस द. तो वो कॉन्शियस उनको अपने को वो एक एक्शन में भी लाना होता है कि भाई ये लगा लो, तो नहीं, उनको कोई एक्शन भी देना होगा कि भाई आप ना मंदिर जाके ये चढ़ा दो. मंदिर जाके चढ़ाना इज जस्ट एन एक्शन, बट इट्स अ न्यू थिंग दैट दे आर डूइंग.
तो उसकी वजह से अपने देखते ना, अरे मैं तो भगवान में तो देवी का मंदिर चढ़ा, 1000 स्टेप चढ़ा और मेरे तो ये हो गया, मेरे तो मतलब चमत्कार हो गया. सो दीज चमत्कार्स आर बेसिकली आर own powers that we have within us. We need to harness them, and to harness them, it's it's easy if we understand these एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स. दैट्स वाई एस्ट्रोलॉजी को वेदांग का 6th पार्ट बताया है. नॉट टू फोरसी द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या है, बट टू सी द ओल्ड पैटर्न सो दैट साधना या कोई चीज दे के गुरु लोग पहले क्या करते थे ना, उनका वो नेचर बदल देते थे कि भाई जैसे हम लोग जैनिज्म में होता है कि हम 8 दिन नहीं खाते, 10 दिन नहीं खाते. तो उससे क्या है ना कि वो तपस्या करने की बहुत वो स्ट्रेंथ आ जाती है. तो वहां पे अगेन पैटर्न चेंज हो जाता है. तो we feel happy and we start doing the same thing again and again because we want to again enjoy that same happiness, doing the same thing, which is again temporary. Yeah, like I said, सब कुछ temporary है. There's nothing permanent. I know थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो रहा है. I'll just reduce it. तो change नहीं मैम, ये बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट आई वांट टू आस्क, आप किसकी रिकॉर्डिंग दोगे? बिकॉज मैं अपनी मदर को सुनाऊंगी. शी रियली नीड्स टू हियर दिस. अच्छा. हाँ, ये कितनी बहुत गहरी बात है. मतलब अगर कोई ध्यान से समझे तो आपके ऊपर भी तभी चीजें वर्क करती है जब आप खुद चेंज होना शुरू करते हो, खुद अपने मन में लाते हो. मैम प्लीज डू शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस. नो नो, आई विल. रिकॉर्डिंग तो है चालू, इसका रिकॉर्डिंग भी दूंगी. एंड एक्चुअली में देखा जाए ना, तो यू कैन नॉट चेंज एनी वन एनीथिंग. आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. आप एक ही चीज कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो. द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप देखोगे धीरे 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 बगल का सारा कुछ चेंज हो रहा है. मतलब पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हस्बैंड का हो जाता है, बच्चों का हो जाता है. दे हैव नॉट चेंज्ड, इट्स यू हु हैव बीन वर्किंग. तो ये जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास है ना, एक्चुअली इट्स गोना हेल्प यू यू नो बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, रादर देन कि अपने उसको चेंज करने बैठे हैं, उसको चेंज करने बैठे हैं. दैट्स टोटल टाइम हाँ वेस्ट. नहीं, मैं सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ. अभी मैंने कहीं तो पढ़ा था कि साधना करते हैं ना तो द लाइट इन योर हार्ट, हम्म. जिद का शक्ति बढ़ता है. लाइट इन योर हार्ट इंक्रीजेस, हम्म. एंड बिकॉज इट इंक्रीजेस इट जस्ट रेडिएट्स आउटसाइड, एंड हम्म. देन इट रीचेस टू द पीपल सराउंडिंग यू. तो ये बड़ी सिमिलर बात हो गई कि आपने भी बोला, ये रिपीट हो गया 2 दिन में. तो इट्स रियली नाइस ना. तो सही हाँ. है मतलब. मतलब पहले मेरा क्या नेचर था, मैं पापा को कहती थी मेरे ऐसे चेंज करो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे. मतलब आई वुड टेल माय मॉम, आई वुड टेल माय हस्बैंड, मतलब ऐसे. देन आई रियलाइज्ड कि मतलब देयर इज नो पॉइंट टेलिंग एनीवन एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल, कि दूसरे लोग फिर आपको धीरे धीरे फॉलो करें कि हाँ भाई इसने तो बुक रीडिंग करके इतनी सक्सेस कर ली. सो नाउ इन माय हाउस सब सब बुक पढ़ने लग गए. So That's true. That's true. Yeah. so yeah, I mean you yourself have to be an example of that. तब ये प्लैनेट्स अपने को ना बहुत चीज सिखाते हैं. मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी. आगे चलते हैं. तो प्लैनेट इज इक्वल टू पैटर्न, ये तो अपने को समझ में आया कि भाई चलो, प्लैनेट इज इक्वल टू जो भी प्लैनेट जहाँ पे भी हैं, वो जो कुंडली है, वो कुंडली इज नथिंग बट आर पैटर्न. और उसमें रिपीटेड थॉट प्लस रिपीटेड इमोशंस प्लस, अब ये देखो, थॉट, इमोशन एंड एक्शन, ये हो गई इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति. ये 3 भी है. प्लस ये विष्णु ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि भी है. तो उसी चीज को, थॉट आया कहाँ से? ब्रह्मा ग्रंथि से आता है. इमोशंस उसमें अपने डाल देते हैं, तो वो विष्णु ग्रंथि हो गया. और उसमें उसी चीज को हम एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो गया रुद्र ग्रंथि. तो वो करते करते फिर वो एक
एक ग्रंथि बन जाती, मतलब 3 नॉट्स का एक नॉट बन जाता है। जब एक नॉट बन जाता है तो वो एक टोटल एक एक पैटर्न बन गया। तो वो एक पैटर्न को खोलने के लिए आपने 3 चीज डाली उसमें, तो उसको खोलने के लिए भी आपको 3 चीज डालनी पड़ेगी, करेक्ट? तो आपको थॉट रिपीटेडली ये डालना पड़ेगा, अभी मुझे, अभी मेरा थॉट क्या है, मुझे 10 kg मेरे को मेरा वजन घटाना है ना? तो मेरा कंटिन्यूस थॉट क्या रहता है कि भाई मैं कैसे कार्ब्स कम खाऊं और प्रोटीन कैसे। तो कार्ब्स बीच मैंने छोड़ दिया, मैं प्रोटीन पे ही ध्यान देती हूँ कि मैं मेरा प्रोटीन कैसे खाऊं। और उसमें इमोशंस डालती हूँ कि भाई चलो ये बहुत टेस्टी है, इसमें मैंने ये इसको ये डाला, मैंने डेट्स डाल दिया। और वो एक्शन में भी आ जाता है कि चलो ये खुद बनाया है मेहनत करके तो खाना भी है। तो ये रिपीटेडली मैं करती रहूंगी तो आई एम श्योर नेक्स्ट 2 मंथ्स में आई रीच माई गोल। तो वैसे ही अगर मेरा गोल तो चलो 10 kg वजन घटाना है, अब आपका गोल समझो कि जॉब लेना है। तो वैसे ही जॉब में अब कैसे नई जॉब आएगी, तो नए नए जगह पे अपने को कोई वास्तु की कोई चीज लगाने से तो जॉब आएगी नहीं ना। दैट इज जस्ट अ वैल्यू टैगिंग कि भाई आपने ये पोस्टर लगा दिया, इट्स अ वैल्यू टैगिंग कि ब्रेन उसको वैल्यू टैग कर रहा है। बट एक्शन तो आपको रिज्यूमे भेजना पड़ेगा। और हर बार यही कि हाँ इस बार मुझे मिल जाएगा, ये देखना मेरा ये इसमें मेरी ये स्ट्रेंथ है। स्वॉट एनालिसिस किया, अपनी स्ट्रेंथ्स देखी, वीकनेस देखी, और फिर वो रोज हर दिन एक 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 कंपनी को भेजते रहे तो 1 महीने में जॉब तो मिलेगी ना। लाइक ऐसे ही हर चीज को अपने को देखना होगा, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू रीच आवर गोल। सो व्हेन अ पैटर्न रिपीट्स लॉन्ग इनफ इट बिकम्स आवर डेस्टिनी। तो अपने उसी को ही तो डेस्टिनी कहते हैं। अपने कहते हैं अरे ये मेरी डेस्टिनी है। आपने बचपन से ये पैटर्न लेके आ रहे हो, उसमें चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो यही तो डेस्टिनी होगी ना। जैसे ही आप उसको चेंज कर लोगे तो आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है। वही चीज समझना है कि ना ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी इज जस्ट डेस्टिनी आउट ऑफ दोज 5 थिंग्स डेस्टिनी इज ओनली 20%। और भगवान ने उस 20 उसको फिफ्थ पॉइंट बताया है। उससे पहले जो 4 पॉइंट भगवान ने बताए हैं, अगर अपने उनको भी करें ना, एफर्ट्स है, माइंडसेट है, फिर रिसोर्सेज है, ये सब अपने वो चारों करें तो डेस्टिनी उसी तरह से बनेगी अपने। तो क्यों इसमें अपने साधना में कहते हैं ना कि हर दिन भगवान को याद करो। क्यों? ताकि वो एक अपनी एक वो अगर नेचर बन जाए ना, वो अपना एक पैटर्न बन जाए कि हर चीज में अपने भगवान को थैंक कर रहे हैं। तो जब मर रहे होंगे ना लास्ट में डेथ बेड में, अपने को भगवान ही याद आएंगे। क्योंकि वो अपनी एक हैबिट बन चुकी है, वो अपना एक रिपीटेड एक्शन रहा ना, जिसकी वजह से मरते समय एटलीस्ट है ना, मरते मरते समय तो भगवान को याद करें ताकि मे बी है ना अपने मोक्ष मिल जाए, उन्हीं में अपने मर्ज हो जाएं। तो दैट्स द रीजन रोज हर चीज में अपने ग्रैटिट्यूड करना जरूरी है कि भगवान थैंक यू आपने ये दिया मुझे। तो वही सेम चीज अपने इसमें करें ना, अपने को हर चीज हैबिट में, तो वो बहुत इजीली चेंज हो जाती है। आई मीन इजीली नहीं कहूंगी बट हाँ एफर्ट लगता है। और प्रोक्रास्टिनेशन और ये सब, ये कहीं ना कहीं कोई वीकनेस होती है जिसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन भी रहती है अपने। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर डीप डीप जो हर्ट्स हैं अपने, ये सब में काम करना जरूरी है। तो सबसे पहले अपने ने ब्रह्मा ग्रंथि को पकड़ा, फिर इमोशंस में विष्णु ग्रंथि को पकड़ा, फिर उसी को रुद्र में। और ये इट्स लाइक अ सर्कल कि भाई ये इधर अपने ने इसको अ, और एक दूसरे से ये एकदम लिंक्ड है। अगर पैटर्न कोई चीज का बदलना है अपने को, तो इसको रिवर्स गियर में भी चलाना पड़ेगा अपने को। लाइक कल की क्लास में अपने ने सुना ना कि सैटर्न राहु केतु ऑफन इंडिकेट्स कार्मिक लेसन्स एंड डेट्स। वो तो मतलब इट्स बट ऑब्वियस, while the other planets indicate behavioral patterns that can be consciously modified। इसीलिए मैंने इस क्लास को 3 में ब्रेक किया था कि कल मैं कार्मिक डेट वाला करूंगी, आज मेरा रहेगा कि बिहेवियरल पैटर्न, कि भाई वो इस तरह से वो बिहेव क्यों कर रहा है। तो इट्स लाइक है ना, हमने किसी के बैक बाइटिंग करना कितना आसान है, वो देखो ये ऐसे कर रहा है, ये तो ऐसे बोलता है, बिकॉज दैट्स द बिहेवियरल पैटर्न। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके कोई जुपिटर वीक होगा या मर्क्यूरी वीक होगा। तो रादर देन उनकी गलतियां निकालना, उनके बारे में बोलने से अच्छा है कि अपने एक चुपचाप उनका एक पैटर्न समझते रहें। तो
एक समय ऐसा आएगा कि लोग अपने से पूछेंगे, भाई आप तो कंसल्टेंट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आप वास्तु कंसल्टेंट, हमें बताओ हम क्या चेंज करें। तब उनका आपने बिहेवियरल पैटर्न समझा ना, तब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है किसी को कुछ बताना, कि ऐसे नहीं है कि भाई वो हमें पैसे ही नहीं दे रहा तो हम कुछ पैटर्न करेंगे ही नहीं, चुपचाप अपने करते रहो। तो क्या होगा ना, धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, थॉट रिपीट इमोशन एक्शन, वो पैटर्न है, वैसे ही आप भी सोचते रहोगे, उनका पैटर्न बिल्ड करते रहोगे ना, साल 2 साल में आपके भी बहुत अच्छी कंसल्टेशन आने लगेगी, क्योंकि वो आपने पैटर्न बिल्ड कर लिया। अभी तुरंत आपने वास्तु का कोर्स किया और तुरंत अगले दिन से तो आपके कंसल्टेशन आएगी नहीं ना, जब तक वो पैटर्न बिल्ड नहीं करोगे। अगर नहीं आ रही है कंसल्टेशन, तो चुपचाप अपने आप ही उनकी अपने लिए कंसल्टेशन करते रहो, तो आप अपने एक एक ऑरा में एक पैटर्न बिल्ड कर रहे हो, एंड उसी से फिर धीरे धीरे आपको उसका रिजल्ट आने लगता है। तो धीरे धीरे आज से 2 साल में आप देखोगे कि बहुत अच्छे कंसल्टेंट आप बन गए, वो आपकी डेस्टिनी बन गई। तो आपको वास्तु कंसल्टेशन अपनी डेस्टिनी में कैसे लाना है कि भाई मैं भी बहुत अच्छा कंसल्टेंट बनूं, तो आपको ये पैटर्न, अपना नया बिहेवियरल पैटर्न बनाना पड़ेगा, विच इज कॉन्शियसली माइंडफुली आप करोगे तो होगा। मैं एक बार ब्रेक लूंगी ना, आई वांट ड्रिंक सम वाटर प्लीज, तब तक आप लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ध्वनि जी, जयश्री जी, आप लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर लो प्लीज। यस मैम। अभी मैं पीयूष सर से ना 2-3 दिन पहले ही बात कर रही थी कि कैसे, बिकॉज आई वेंट एज ए क्लाइंट, राइट। गुरुमा ने मुझ पे बहुत काम किया है अभी तक, तो we were talking about how I was not able to talk a lot, right? So, Guruma, in last 1 year, she has worked extensively on this thing, and you all can see, right, that how now I can at least share, ask questions. पहले मेरी मतलब मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, भले ही मेरा नाम ध्वनि था। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा चेंज मुझे ना मेरे में ये लगा है कि शी हैज़ वर्कड रियली एक्सटेंसिवली सिंस लास्ट 1 year ऑन दिस, एंड ये पैटर्न मेरा ब्रेक हुआ है अभी, मतलब बहुत काम किया डेफिनेटली, गुरुआ ने भी, मैंने भी, बट या आई एम ऑन द राइट ट्रैक नाउ। सो दिस वाज द बिगेस्ट थिंग दैट चेंज्ड इन पास्ट 1 year, एंड बिकॉज ये डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है कि एक बार एक चीज अगर चेंज होनी शुरू होती है ना, देन इट्स लाइक अ डोमिनोज, कि एक गिरा तो दूसरे भी लाइन सर गिरते ही रहते हैं, एंड यू कैन सी लॉट ऑफ अदर चेंजेस दैट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट चेंज इन यू। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। तो एक स्काई व्यू करके ऐप है, आई यूज दैट, एंड मैं बस ये इन स्टार्स को गेज करते रहती हूँ, अरे वो देखो जुपिटर, वो देखो सैटर्न, ये प्लैनेट्स तो बहुत इजीली दिख जाते हैं। और अभी तो जुपिटर एंड वीनस आसपास में ही है। तो उस दिन मैं जुहू बीच में थी ना नेहल जी के साथ में, तो वी वर जस्ट वॉचिंग जुपिटर एंड वीनस टुगेदर। तो उससे आई डोंट नो, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय, मे बी यू गाइस शुड आल्सो ट्राई। मैंने स्काई व्यू जिसको भी बताया है, एवरीबडी हैज थैंक्ड मी, क्योंकि स्काई देखने में, बिकॉज दे से साइकोलॉजी में कहते हैं दैट स्काई गेजिंग इज वन ऑफ the best ways to re- to reduce your cortisol level, because कोई भी चीज अपने डिस्टेंस में देखते हैं ना, तो that's how we have evolved in like lakhs of years, and we have reached this stage जहाँ पे अपने को स्टार्स को देखते रहते हैं, तो वो अपना जो एक होता है ना कि दैट्स द सो वी हैव कम फ्रॉम द स्टार्स, सो कहीं ना कहीं हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, या वी आर ट्राइंग टू
नो द सोर्स कि हम कहाँ से आए हैं. सो इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है. आई डोंट नो द एंटायर साइकोलॉजी येट, but stargazing, you guys should try and see how your cortisol level also goes down. And early morning भी उठते ही, अपने जो शास्त्र में कहते थे ना भाई, उठते ही सूर्य को देखना है, सूर्य अर्घ्य करना है. सो दिस इज ऑल्सो नाउ, इट्स वेरी पॉपुलर इन साइकोलॉजी कि भाई उठते ही आप बाहर जाओ और धूप सेको और स्काई को देखो, स्काई गेज करो. तो मतलब ऑब्वियसली आपका जो साइकिल है, दैट दैट स्टार्ट्स. एंड जो हार्मोन्स जिस टाइम पे रिलीज करने हैं वो पर्टिकुलर उसी टाइम पे रिलीज हो जाते हैं. तो ये सब है अपने शास्त्र में, बट इट्स जस्ट हाउ वी पुट इट अक्रॉस इज व्हाट मैटर्स. तो अब अपने आए अब अपने कैसे समझेंगे कि इसकी ये पैटर्न की आइडेंटिटी क्या है और इसका अपने को. तो अब नेगेटिव पैटर्न क्या होता है सूर्य का, कि सूर्य का पैटर्न, सूर्य इज अबाउट सेल्फ ना, आत्मा है सूर्य. तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट सब सन से आता है. तो नाउ सन इज नेगेटिव पैटर्न. सन का क्या रहेगा कि भाई कोई पर्सन, या अपने आप में भी देखो, आर यू सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स? क्या ये आपको अच्छा लगा? क्या ये अच्छा है? अरे ये देखो मेरा नाम हो रहा है. इवन इफ यू आर कि वो आपका नाम की भूख है या नाम के पीछे आप भाग रहे हो, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर सन. तो सीकिंग वैलिडेशन, ईगो कॉन्फ्लिक्ट, उसने मुझे ऐसे कह दिया, वाह उसने ऐसे कह दिया, तो वो ईगो का ये कॉन्फ्लिक्ट होता है. दैट इज ऑल्सो सन. कॉन्फिडेंस नहीं है, भाई पता नहीं मैं ये करूंगा सही होगा. अब कई बच्चे हैं मुझसे सीख तो लेते हैं, पर पता नहीं मैं वास्तु कर पाऊंगा क्या, मुझसे होगा क्या. तो वहीं पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. तो कॉन्फिडेंस नहीं आता मतलब कि सन, दैट पर्सन सन इज वीक एंड वी नीड टू वर्क ऑन द सन. And poor relationship with father. Sun is father and moon is mother. तो सन के साथ, फादर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, तो चलो पता चल जाता है भाई इसका, तो चलो इसका सूर्य अफ्लिक्टेड है और वो अथॉरिटी लीडरशिप लेने की ताकत नहीं है, मतलब सन वीक है. सन अथॉरिटी नहीं ले पाता, ना कि अकाउंटेबिलिटी रहती है, ना वो लीडरशिप करके वो आगे जाना चाह रहा है वो बंदा, तो यानी कि उसका सन वीक है. तो ये सारे ज्यादा अपने बच्चों पे अपने अप्लाई करके फिर धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरा बच्चे, पहले अपने बच्चे को समझो कि अपने बच्चे का क्या पैटर्न है, क्या ये चारों चीजें हैं उसमें. नहीं है तो फिर सन को छोड़ दो, दूसरे प्लेनेट में जाओ. तो अब इन चारों में अपने ने देखा कि चलो, या अपने आप में या अपने हस्बैंड में है क्या, चलो तो फिर अपने को समझ में आता चलो हस्बैंड का सन वीक है. तो अब अगर न्यू पैटर्न में बाद में आएंगे, पहले अपने समझते हैं कि चलो ये अपने ने देखा, ये चलो ये वीकनेस है भाई उसमें, ये सब वीकनेस है. तो अब इसकी रेमेडी करेंगे अपने. तो रेमेडी क्या है भाई, सनराइज डेली देखो. अपने कहते हैं ना भाई सूर्य अर्घ्य दो, भगवान सूर्य को जाके पानी दो. एंड एक क्लियर गोल बना लो एंड कंप्लीट इट. अब छोटे छोटे गोल्स बनाने होते हैं कि भाई मैं 5000 स्टेप्स चलूंगा, तो डेली गोल बनाना है 5000 स्टेप. 10,000 एक साथ बना लेते हैं, वो गोल रीच होता नहीं है, तो वो टूट जाता है. इससे अच्छा छोटे छोटे गोल्स बनाने की, भाई चलो आज मैंने एक ही चैप्टर पढ़ना है विश्वकर्मा प्रकाश का, एक ही चैप्टर लिया, या मैंने 4 पन्ने पढ़ने हैं. तो इस तरह से छोटे गोल्स लेके उसे कंप्लीट करोगे ना, धीरे 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 वो एक रेपिटेशन हो जाएगा और फिर वो एक पैटर्न बन जाएगा कि आप कोई भी चीज को कंप्लीट करे बिना आप यू विल नॉट बी ना हैप्पी कि अरे यार मेरा ये काम अधूरा रह गया. तो छोटे छोटे गोल्स लेने हैं, तो इससे एक रेमेडी होती है. अब मेंटेन गुड पोस्चर, ऑब्वियसली ना मतलब पोस्चर अपने देख रहे हैं आदमी ऐसे सल्की बैठा है, स्ट्रेट नहीं बैठा, कंधे ऊंचे नहीं है. हालांकि मुझे पता है अभी सब लोग अपनी पोस्चर इंप्रूव करने में लगे हुए हैं. तो गुड पोस्चर, कोई गुड पोस्चर में बैठा है उसी से पता चल जाता है कि चलो इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है.
तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स। अब जैसे अपने बच्चे भी ना, अरे वो पैर हिलाते रहते हैं, उनको अपने को बोलना है, पैर मत हिलाओ, ढंग से बैठो, सीधा बैठो। तो इस तरह से उनका पोस्चर भी इम्प्रूव करेंगे, तो भी सन एज अ रेमेडी, सन की रेमेडी होती रहती है। और अपने जैसे मैंने कल बताया कि पैर, पिताजी के पैर छूने, मदर के पैर छूने, क्यों, राहु केतु है। राहु केतु 10th हाउस और 4th हाउस में था, तो सबसे इजी है कि भाई पैर छू लिए तो एक होता है ना कि एक ग्रैटिट्यूड भी हो गया। और मेंटोर्स हैं, अथॉरिटी, कोई हायर अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अब उनके पैर नहीं छूने, उनको अपने थैंक यू ग्रैटिट्यूड मैसेज कर दिया, कोई गिफ्ट भेज दिया कि भाई ये ग्रैटिट्यूड के लिए। अब कहीं गए, डॉक्टर से मिलने गए, तो उसको एक गिफ्ट दे दिया, बिकॉज डॉक्टर इज ऑल्सो लाइक योर मेंटर ना। तो अपनी उससे क्या होता है, अपना अपना खुद का सन इम्प्रूव होता रहता है। एंड डेफिनेटली सनलाइट में तो टाइम स्पेंड करना है, तो इसीलिए हॉलीडे पे चले गए। और कुछ नहीं, अब कई लोगों का हैबिट है कि हॉलीडे में जाना है तो 10 मंदिर हैं, तो वो सारे 10 मंदिर वहाँ कवर करेंगे। एक ऐसा हॉलीडे भी करना है जहाँ कुछ नहीं करना, बस सन बेदिंग करना है या मून बेदिंग करना है, सो दैट ऑल्सो रियली इम्प्रूव्स योर सन। तो ये सब ऐसे अनगिनत रेमेडीज हो सकती है। ये तो मैंने जैसे छोटी सी 4-5 रेमेडीज ली है, तो ये रेमेडीज की। और समझो फॉर एग्जांपल अपने बच्चों में ये रेमेडी की, तो ये रेमेडी मुझे पता चला रहे मेरे बच्चे का सन वीक है, वो एकदम बेढंग से बैठता है, ढंग से बैठता ही नहीं है। तो वी आई अंडरस्टूड दैट आई नीड टू वर्क ऑन हिज रेमेडी। तो मैंने आई मेड हिम डू, सपोज मैंने उसको रोज अर्ली मॉर्निंग सनराइज पे बिठा दिया कि भाई चलो सनराइज देखेंगे, या सनडाउन भी देख लिया, चलो सनराइज में तो आजकल कोई उठता नहीं है, तो सनडाउन देख लिया। देन आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी दैट इनका नया पैटर्न है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएंगे, वो लोग अपने आप, वो लीडरशिप क्वालिटी आने लग जाएगी, वो क्लास में अपने आप लीड करने लगेंगे, चलो ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा ऐसे। और दे डेवलप सेल्फ रेस्पेक्ट रादर देन सीकिंग प्रेज कि भाई पापा तो उसी की प्रेज कर रहे हैं, पापा मुझे प्रेज नहीं कर रहे, वो कंपैरिजन नहीं रहता, क्योंकि दे नो दैट या आई एम गुड एट इट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो अब ये नेगेटिव पैटर्न देखा, फिर रेमेडी की, और फिर न्यू पैटर्न आ जाता है। तो दिस इज हाउ अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये ईस्ट में मेरे क्लाइंट के क्या करती हूँ, ये क्रश्ड जो क्या बोलते हैं, रोज क्वार्ट्स है, ये मैं ईस्ट में लगवा देती हूँ। और टाइलिंग का काम हो रहा है तो मैं उससे नीचे लगवा दूंगी, नहीं तो मैं प्लांट्स में डलवा देती हूँ, एक बोल में डलवा देती हूँ रोज क्वार्ट्स का। कोई हॉर्स मिल जाए तो उनको कहती हूँ भाई वो लगा लो आप। सो रोज क्वार्ट्स जो इसका कलर है एंड इसकी जो वो फ्रीक्वेंसी है अपनी, कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो सन से भी मैच करती है, तो इसीलिए ईस्ट में मैं रोज क्वार्ट्स काफ़ी यूज़ करती हूँ। और मेरे हर प्लांट में ना डायरेक्शन वाइज वो क्रिस्टल रहेगा। सो प्लांट्स, स्पेशली इंडोर प्लांट्स में ऊपर क्रिस्टल का पाउडर, वो एक मुट्ठी भर के लेती हूँ और वो ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। अब इफ़ आई गेट बिग चंक्स तो मैं प्लांट्स को नीचे जो जहाँ पे अपने नीचे बड़े बोल्डर्स डालते हैं ना, इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज़ दीज क्रिस्टल्स नीचे, एंड उस पे फिर मैं मैन्योर एंड मट्टी भर के फिर ऊपर उसका प्लांटेशन कर देती हूँ। तो आई फील दैट कि मेरा हर प्लांट इज लाइक अ क्रिस्टल ट्री, कि भाई हर एक में ना कुछ वो आयंस क्रिस्टल के आ जाते हैं। तो दिस इज अ रेमेडी दैट आई यूज फॉर माई सेल्फ। अभी तक क्लाइंट को इतना नहीं बताती हूँ, बिकॉज इट्स टू मच वर्क। शायद कभी वीडियो बना के डाल दूंगी। हाँ, अब अपने इस पोस्टर पे आते हैं। इस पोस्टर में देखो, एक तो सूर्य मंत्र है, चलो ये सूर्य मंत्र एटलीस्ट एक वैल्यू टैगिंग हो जाती है कि हाँ ये सूर्य मंत्र है, करना है करना है। वो एटलीस्ट वो दिमाग में आ गया ना कि चलो कि हाँ करना है, उतना उतने में कुछ ना कुछ तो एक नया न्यूरॉन डेवलप हुआ ना कि हाँ सूर्य का मंत्र करना है। और वैसे ही स्माइलिंग सूर्य है, तो एक हंसता हुआ सूर्य को देखते हैं तो मतलब ऑब्वियसली ना अपने अंदर जो अपने सूर्य भगवान जो स्माइलिंग बैठे हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, वो भी काइंड ऑफ इट्स लाइक लाइट ना, अंदर अपनी जितनी भी चित्त है ना, चित्त में जो भी अपनी चेतना है, दे आर लाइक छोटी छोटी लाइट बल्ब्स, कि भाई
एक अंदर जो मेरा सूर्य बैठा है उसमें ये मैंने सूर्य को देखा, तो अंदर एक छोटी सी लाइट जल गई, एक चिंगारी सी आ गई कि हाँ सूर्य की चिंगारी आई कि चलो सूर्य को ठीक करेंगे। एंड वज्र है एंड रूबी है और 7 घोड़े हैं, और उसमें एक ही व्हील है, भगवान सूर्य के एक जो चैरियट है उसमें एक ही व्हील है। तो इस तरह से मैंने ये सारे इनको डेवलप किए। फिर अब इनकी रोज ही हवन होती है तो पंडित जी इन सबको चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से अपने इसकी रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स पे, अपने खुद के घर में। रूबी है, ये मैं बहुत बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करती हूँ। रूबी नीचे छोटा सा प्रिक करके रूबी डाल दिया, ये बोर्ड है इसके ऊपर चिपका दिया यहाँ पे, या आसपास में कुछ भी रूबी, कुछ भी वहाँ पे कोई वॉल हैंगिंग है उसमें मैंने रूबी डाल दी। तो ईस्ट में रूबी लगानी है, तो वो जो सूर्य की फ्रीक्वेंसी उससे मैच होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो उससे अपने को रेमेडी आती है। अब नाउ दीज रेमेडीज ऑल्सो दे आर लाइक ब्रिज। एक बार आपने पार किया तो वो रेमेडी उतनी नहीं काम करेगी। इट्स नॉट दैट कि उसमें से रेज नहीं आ रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, वो आ रही है। ब्रह्मा, वो उसकी जो ब्रह्मा ग्रंथि है वो चल रही है, उस हर एक रेमेडी की भी ना ये ग्रंथीज होती है। बट उस जो अपने साथ में इमोशनल कनेक्ट है वो ऑटो पायलट में आ गया, इसीलिए एक रेमेडी थोड़े टाइम तक ही काम करती है, उसके बाद में नहीं काम करती है। तभी अपने कहते हैं ना इनको चेंज कर लो, इसका तो पावर खत्म हो गया। पावर जेमस्टोन का खत्म नहीं हुआ है, पावर अपने खुद के माइंड ऑटो पायलट में आने से पावर खत्म हुआ है। इसीलिए या तो बड़ा लाते हैं कि भाई अपने वैल्यू टैगिंग हो गई, अरे इतना एक्सपेंसिव रेमेडी है ये काम करेगा ही, तो बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू टैगिंग वो रेमेडी काम करती है। तो हर रेमेडी के पीछे एक साइकोलॉजी है, उसको भी समझना इम्पोर्टेंट है। ये हो गई रूबी। तो दिस इज सन। तो अब अपने ने सन पे काम किया तो अल्टीमेटली अपना न्यू पैटर्न क्या हुआ, ये तो 3-4 ही हैं। अब अपने ये जो पुराण पढ़ेंगे ना उसमें एक नई नई चीज अपने सामने आती रहती है, तब अपने को पता चल जाता है अच्छा ये ऋषि मुनि में ये है, ये ऋषि मुनि का। तो एक टाइम के बाद में ऐसा होगा कि आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, कुंडली नहीं देखनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को देख के ही आप कुंडली बता दोगे कि इसकी तो कुंडली में ये है। सो दिस इज हाउ द सन वर्क्स। यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे लग रहा है क्लास चल ही नहीं रही है, कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा। बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझा रहे हो, तो मतलब डाउट ही नहीं रहता। ट्रांस में चले गए हम। ट्रांस में चले गए? आई एग्री, ट्रांस। ओरे बाबा, हैवी वर्ड। बट इन अ वेरी रिसेप्टिव ट्रांस, आई वुड से। नहीं, मुझे लग रहा है माँ कि साधना ये सारी चीजें कर देती है अपने आप ही। जैसे पोस्चर भी, अगर आप बैठते हो जप करने के लिए तो वो भी ठीक हो जाता है उससे, है ना? हाँ, फिर करेक्ट। या तो साधना बहुत कुछ ठीक कर देती है, इसका मतलब अरे तो मैं सब कुछ, सारी की सारी खिचड़ी जो है या सारी विद्याएं हैं, वो अल्टीमेटली साधना पे तो ले जाती है, क्योंकि वहीं से तो अपने अपने अंदर के ईश्वर को देख सकते हैं ना। चाहे हम्म, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग वर्क्स। ऐसा नहीं है रेकी काम नहीं करती है, प्राणिक नहीं करती है, ट्राइबल्स भी अलग अलग कुछ कुछ हूफा फा करके कुछ भी करते रहते हैं, एवरीथिंग वर्क्स। तो द ब्यूटी इज दैट कि भगवान को देखने के सबके अपने अपने एक तरीके हैं। एवरी रिलीजन इज गुड, ऐसा नहीं है हम ही महान है, सब रिलीजन महान है, बिकॉज अल्टीमेटली सबका गोल तो एक ही है ना कि भाई चित्त की शांति है। वो yeah, एक पहुंचना है अपने सोर्स के पास में। इसीलिए स्टार गेजिंग बहुत काम आता है। आई मीन जस्ट ट्राई दिस। ऑब्वियसली शहरों में नहीं दिखता है तो वी हैव टू गो आउटसाइड। जब आपने बोला ना तो मुझे नील डिग्रास टाइसन याद आ गया। ही हैज अ वेरी फेमस सेइंग ना कि वी आर स्टारडस्ट। आई मीन, अच्छा, नो आई डोंट नो। गुड। या करेक्ट, वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट ओनली ना। या
सो दिस इज सूर्य। सो सूर्य, अब अपने समझ गए ना, किसी का सूर्य अपने को देखना है और अपने को सूर्य पे काम करना है, तो इस तरह से। और सबसे बेस्ट इजीएस्ट वे है, अपने खुद की फैमिली पे पहले ट्राई करो सारा। आया अब, आया मून। मून मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। किसी के इमोशंस पे काम करना इज एक्चुअली टफ। So now moon is the pattern of emotional security. तो अब कोई अपने को लगे, कोई ऐसे बोले, अब देखो मैं आई कैन डू दिस, मेरे पास ये पावर है, तो मतलब वो एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी की बातें हो गई ना कि मतलब, या आपने देखते हैं सीरियल, जो किलर्स होते हैं उनका एक पैटर्न रहता है कि वो सारे सीरियल अपने मूवीज देखते हैं ना कि वो पैटर्न के थ्रू ही उसको पकड़ पाते हैं कि इसका, उसने ऐसे बॉडी में एक्स मार्क बनाया, ये मार्क बनाया, तो वो साइकोलॉजी के थ्रू इट्स वेरी इजी फॉर द कॉप्स टू कैच देम। वैसे ही अपने को भी, अगर अपने को अपने क्लाइंट का वीकनेस कैच करना है ना, तो सबसे इजीएस्ट है, सबसे पहले उनका मून देखो और मून पे काम करो। और मून पे काम करोगे तो इमीडिएट रिजल्ट है, बिकॉज मून इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। और सबसे इजी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट रिजल्ट देना सबसे इजी है मून से। तो इफ यू गाइज नोटिस, आपने ध्वनि जी, आपने सबने नोटिस किया होगा, जयश्री जी, कि मैं मून की रेमेडी बहुत हर टाइम देती हूँ, एंड पीपल कम बैक कि बहुत अच्छा रहा, बहुत रेमेडी अच्छी रही है ना, रिजल्ट रहता है। बिकॉज ये moon is what actually does the quick resolution या क्विक रिजल्ट गिवर। तो अब अपने को नेगेटिव पैटर्न कैसे पता चलेगा कि ओवर थिंकिंग है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, और हैवी मूड स्विंग्स होते हैं, या थोड़े भी ज्यादा मूड स्विंग्स है, तो हमें समझ में आ जाता है कि चलो ये मून का चक्कर है। और ये व्यक्ति पास्ट में बहुत रहता है कि भाई मेरे ऐसे हुआ था, मेरे ऐसे हुआ, यानी कि अपने को समझ में आ जाता है कि चलो इसके तो चंद्रमा अफ्लिक्टेड है। और मतलब कुछ भी, और बोलना, इवन बोलने में, और अपने देखते हैं कि हैवी पीरियड की प्रॉब्लम है, हैवी ब्लड फ्लो है, तो भी अपने समझ जाते हैं कि इनका ओवरीज की प्रॉब्लम है ना। ओवरीज इज अगेन डायरेक्टली लिंक टू मून। अब ब्लड की प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने ये भी समझ जाते हैं कि चलो चंद्रमा की प्रॉब्लम है, इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। या लेडीज का अपने समझ में आ जाता है, मेन का थोड़ा कम रहता है बिकॉज ऑफ ओवरीज का वो। तो मदर डिवाइन ने, नेचर ने ही अपने को ये ऐसा बनाया है कि वी आर फीमेल्स, हम हमारे में इमोशंस ज्यादा चाहिए, ताकि हम जो बच्चा है उसको हम नर्चर ज्यादा कर सकें, उस बच्चे को हम इमोशनल सिक्योरिटी दे सकें। तो अब इसीलिए अपने अगर एनिमल्स में भी देखें, तो वो जो बच्चा होता है वो मदर से ही क्लिंग रहता है कि भाई वो जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, तब तक वो मदर से ही चिपका हुआ रहता है। तो ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी लेडीज में अपने को ज्यादा मिलेगी, तो अपने अपने क्लाइंट्स में। और इसमें भी विश्वकर्मा प्रकाश में भी लिखा हुआ है, अगर अपने जैसे कोई भी वो मुहूर्त और देख रहे हैं, तो चंद्रमा, जो लेडी है उनका चंद्रमा देखें कि भाई चंद्रमा अगर उस टाइम गोचर में छठे, आठवें और 12वें भाव में नहीं है, तब अपने उनका चंद्रमा का वो कर सकते हैं कि भाई हाँ, उस टाइम आप अपना ग्रह पूजा या जो भी कर सकते हो। तो अब पता चल गया चंद्रमा की प्रॉब्लम चल रही है या चंद्रमा वीक है। और मोस्टली जिनकी चंद्रमा वीक होती है वो ही वास्तु और ये अकॉल्ट साइंस और ये सब कराने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम इमोशंस की है, बट वो बंदा समझ नहीं पाता, तो वो कहीं ना कहीं ब्लेम करना होता है कि चलो, ब्लेम भी नहीं बोलूंगी, कि एक दे आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। तो वास्तु इज वन वे टू गिव सोल्यूशन, या एस्ट्रोलॉजी इज वन वे टू गिव सोल्यूशन। तो ये नेगेटिव पैटर्न जैसे अपने को पता चला मून का, तो अपने ने रेमेडीज बनाने, उनको तुरंत अपने रेमेडी देने तो अपने को एक टाइम पे बाद देखना ही नहीं पड़ेगा कि इनकी, अपने को इनका चंद्रमा कहाँ पर है। अपने को ऐसे एक उसी में बहुत शकी नेचर होगा तो चंद्रमा छठे का है, मतलब बहुत ज्यादा अकॉल्ट और ये सब में रहेगा तो चंद्रमा आठवें का है।
और एकदम अकेला बैठा रहेगा तो चंद्रमा 12वें का है। तो ये नेगेटिव पैटर्न से ही पता चल जाता है कि चंद्रमा अफ्लिक्टेड है। तो फिर अपने उनको चलो चंद्रमा की रेमेडी देते हैं कि भाई मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन इज द लास्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर क्लाइंट। अपने एज अ वास्तु कंसल्टेंट अपने कोई गुरु नहीं है कि अपने मेडिटेशन देंगे। इसका मैं रीजन बताती हूँ। क्योंकि मेडिटेशन तभी हो सकता है जब मन शांत हो। मन शांत ही नहीं है, भटक रहा है इधर उधर, तो वो कहाँ बंदा बेचारा मेडिटेशन करेगा। तो फिर वो क्लाइंट भाग जाता है कि ये तो मेडिटेट करने बोलेंगे, भाग जाओ। तो अपने को मेडिटेशन उनको एक लास्ट में उनको मेडिटेशन का ज्ञान देना है कि अभी पहले उनका जो मन है उनको उसको शांत करना है। तो सबसे इजी है चंद्रमा का जो अपने रेमेडी दे सकते हैं वो कि भाई आप अपने इमोशंस लिखना शुरू करो। तो लिखने से क्या होता है ना, एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है या एक अवेयरनेस आ जाती है। अच्छा, तो अब आप अपने इंग्लिश मूवीज में देखते हैं ना, वो सबसे पहले पूछते हैं हाउ डू यू फील, आप कैसा फील कर रहे हो। यानी कि आपको अपने इमोशन को समझना है कि आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग डल, आई एम फीलिंग लो। ये जो इमोशंस है ना, अब कई लोग समझ नहीं पाते, तो आप एक अपनी लिस्ट बना लो कि इमोशंस ये पर्टिकुलर 8 इमोशंस हैं या 12 इमोशंस हैं। उनमें से पूछ लो कि भाई आप कैसा फील कर रहे हो। तो जैसे ही आप क्लाइंट को पूछोगे ना आप कैसे फील कर रहे हो, उतने में वो क्लाइंट आपसे कनेक्ट कर लेता है कि भाई ये देखो कितना कंसर्न्ड है, मेरे इमोशंस के बारे में पूछ रहा है। उन्हें ये नहीं पता आप इमोशन के बारे में पूछ रहे हो, पर जैसे ही आप इमोशन के बारे में पूछते हो ना, वो बंदा आपसे कनेक्ट कर लेता है। बिकॉज कनेक्शन का एक ही तरीका है, ऑब्वियसली इमोशंस। क्योंकि अपने को फिजिकली तो किसी से कनेक्ट होना नहीं है, ना ही अपने को मेंटल कनेक्शन बनाने के लिए मतलब बहुत टाइम लगता है। बिकॉज टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ वो मेच्योरिटी होनी पड़ती है। तो इमोशनली अपने बहुत जल्दी किसी से कनेक्ट कर लेते हैं। एंड द बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। तो उनको पहले इसीलिए कथारसिस इम्पॉर्टेंट है एज अ कंसल्टेंट। अपने आप अगर फ्यूचर अपने आप जाते हो तो भाई पहले बात करो उसको, उसकी प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं और आपने बोल रहे हैं ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, फिर तो देयर इज नो पॉइंट। पहले उनके अंदर जो इमोशंस है उनको बाहर लेके आना है। तो वो जैसे ही बाहर ऊपर तिरने लगेंगे ना, तब आप उनको एक 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 करके पकड़ सकते हो। इसलिए कि ना मछली पकड़ने वाली है, अपने बेट देते हैं ना कि ये भाई दाना डाला और मछली ऊपर आई और उसको पकड़ लिया। वैसे ही अपने को कथारसिस में उनके इमोशंस को फिर ये बार बार बोलते रहना, यस आई अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड। तो वो बंदा और ऐसे खुश हो जाता है, ये तो मेरी बात समझ रहा है, फिर वो आपसे और बातें करेगा। तो इस तरह से दैट इट सेल्फ इज अ रेमेडी। जर्नलिंग हो गई, मतलब उन्होंने आपसे बात कर ली तो वो भी एक जर्नलिंग, काइंड ऑफ जर्नलिंग हुई ना। तो जर्नलिंग या कथारसिस से भी आपका और आपके क्लाइंट का बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन बनता है। उसके बाद आप फिर कोई भी रेमेडी देते हो ना, चाहे उनको आप भस्म भी दे दो तो भी वो काम करेगी। बिकॉज इमोशन से कनेक्ट हो गया। तो और इजी भी है इमोशन से कनेक्ट करना। दिस इज दैट्स व्हाई मून रेमेडी इज व्हाट आई प्रेफर गिविंग। और आप लोग भी अगर ये ट्राई कर सकते हो, इट माइट वर्क बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी, मे बी इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। एंड इम्प्रूविंग। और अब मदर से अगर खुद का चंद्रमा अपने देख रहे हैं, अब जैसे अपने देखते हैं कि किसी क्लाइंट की अपनी बेटी से नहीं बन रही है, उस मेरी बेटी से मेरा झगड़ा चलता रहता है, ठीक है, तो यानी कि अपना खुद का भी चंद्रमा ठीक करना है आपको और अपने डॉटर का भी। तो अपने भाई अपने डॉटर के साथ में या अपने इवन इनफैक्ट अपने बच्चे के साथ में भी आपने टाइम स्पेंड किया या सुना, वो क्या, हर बार जज नहीं करना है कि अरे ये तुम ये क्या करे, बस सुनना है। आज के बच्चों को सिर्फ सुनना है कि सुना बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या सुन, बस उनकी बातें सुनते रहो। उतने में ही आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगा। एंड आप फिर देखोगे कि आप अपने बच्चे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो। ज्ञान देना बिल्कुल बंद करना पड़ता है जब चंद्रमा की रेमेडी देनी होती है, क्योंकि तब आपको सिर्फ सुनना है। और प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड बिफोर स्लीप, ऑब्वियसली ना कि भाई मतलब ग्रैटिट्यूड से ब्रेन के बहुत सारे सेल्स चेंज होते हैं। जो एंगर वाले सेल्स हैं उनमें ग्रैटिट्यूड भर रहा है, तो
ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड का जो हार्मोन है वो सेक्रीट हो रहा है, और वो जो कॉर्टिसोल लेवल है उसको वो ड्रॉप कर रहा है। तो रात को करते हैं तो सोते समय ये अच्छे हार्मोन्स रिलीज हुए, तो अपने जो स्लीपिंग है वो भी डीप होती है। तो भाई इसलिए अपने कहते हैं ना रात को प्रेयर करके सो, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कि ग्रैटिट्यूड, कि भाई माँ बाप को ग्रैटिट्यूड दिया, भगवान को दिया। तो ये एक इजी रेमेडीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद में फिर, अब आपने ये रेमेडी दे दी तो आप नए पैटर्न देखोगे उस बंदे में। अब अपने को पैटर्न, न्यू पैटर्न बनाने नहीं, अपने को अपना काम है रेमेडी देना, और रेमेडी और पहले पकड़ना कि क्या क्या कमी है, फिर रेमेडी दी, फिर आप अपने आप न्यू पैटर्न देखोगे। जब न्यू पैटर्न देखोगे वही रिजल्ट है, तभी क्लाइंट बोलेगा अरे भाई हमारे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ इससे। तो आपको उन्हीं के ब्रेन से, अपने को उन्हीं के माइंड से, मतलब उन्हीं पे काम करना है। मतलब आई विल नॉट से वी आर प्लेइंग विद द माइंड, इट्स अ ब्रेन माइंड गेम, इट इज अ माइंड गेम ऑफ कोर्स, बट नॉट एज अ प्ले, बट इन अ वेरी टैक्टफुल एंड अ वेरी मेच्योर्ड वे अपने को ये काम करना है। तो आप ये रेमेडी की आपने, तो अपने आप देखोगे कि जो बच्चे मदर से दूर भागते हैं या झगड़ा करते हैं, उनमें एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, वो सेल्फ नर्चरिंग की हैबिट आ जाती है कि भाई पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों का मास्क लगाओ। नहीं तो कई होते हैं ना कि वे दूसरों के लिए करते रहते हैं, खुद के लिए तो उन्हें टाइम ही नहीं रहता। और इनर पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर पीस आ गई तो मेडिटेशन का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, तब मन लगने लग जाता है मेडिटेशन का। तो अब मैंने ना सबके अफर्मेशंस भी दिए हैं, दैट रात को सोने से पहले आई एम सेफ एंड सपोर्टेड। सबसे ज्यादा अपनी प्रॉब्लम क्या है ना कि अपने सेफ फील नहीं करते हैं, इसीलिए अपने हर टाइम अपने को लगता है यहाँ चला जाऊं, यहाँ भाग जाऊं, ऑफिस चला जाऊं, या ना, बिकॉज या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है या तो वी डोंट फील सेफ। तो अफर्मेशन रात को अपने देंगे ना कि आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड, तब ये मून अपने आप ठीक होने लगता है। यस वैशाली जी। आपका हैंड रेस था। हेलो। या हाँ, मेरे दो क्लाइंट्स हैं जिनकी उनके माँ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, दे आर इंस्ट्रेन्ड। तो इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज आई कुड फील दैट बिकॉज दे हैव डिफिकल्ट रिलेशन विद देयर मदर्स। उनका चंद्रमा बहुत खराब, और एक की तो राशि भी कर्क है, तो उस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे लगता है मुझे। हम्म। कर्क राशि पे तो पड़ेगा ही ना, बिकॉज हाँ जी। और उसने काफी सालों से अपने माँ से बात ही नहीं की है। आई मीन, इतने इंस्ट्रेंज्ड है रिलेशन। तो हम्म। इसको कैसे करेक्ट किया जाए? क्या अफर्मेशन, आई मीन हाँ, फॉरगिवनेस से अफर्मेशन तो है ही, help? रात को अफर्मेशन किया, जर्नलिंग हाँ। की, और आप अपने क्लाइंट से एक टाइम ले लो कि भाई अपने इस टाइम पे बात करेंगे, और सिर्फ अपने क्लाइंट की बातें सुनते रहो। बचपन में, बचपन में मदर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, मदर के साथ हम्म। में खेलते थे, ऐसी कोई हम्म। यादें जिससे जुड़ा हुआ हो, मदर मदर के साथ में उन्होंने कैसा टाइम स्पेंड किया बचपन में। क्योंकि कहीं ना हम्म। कहीं जो ये रिलेशनशिप ऐसा हुआ है उसका कहीं ना कहीं सोर्स कोड बचपन में छुपा हुआ रहता है, कि बचपन में मम्मी ने थप्पड़ मार दिया या मम्मी ने ऐसा बोल दिया, तो वो वहीं से वो सीड प्लांट हो चुका था। हम्म। धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे वो आज जाके पेड़ बन चुका है, करेक्ट। हम्म। तो हम्म। उसका जो आपको जो सोर्स कोड है, या जो उसका जो मूल बीज मिलेगा वो बचपन में मिलेगा। उसके साथ बैठ के बचपन की बहुत सारी बातें करते रहो, तो धीरे 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 अपने आप, अपने आप देखोगे ना कि अपने आप रिलेशन ठीक हो जाता है। आपने कुछ नहीं किया, बस आपको बचपन की बातें सुननी होगी। बट आई थिंक शी हैज बैड मेमोरीज ऑफ हर मदर, दैट ऑफ इज ओके, वही इम्पैक्ट बैड उस पे मेमोरीज, बहुत है। नहीं हाँ। नहीं, दैट इज द ब्यूटी, मेमोरी यस। इज द मेमोरी, हम्म। से ही हम्म। वो इमेज है। ठीक है, yes। वो मेमोरी ब्रेन इमेज के फॉर्म में सेव करता है, उसने ब्रेन ने इमेज के फॉर्म में उसको सेव किया, सेव करने के बाद में वो उसको, वो उसकी वहीं रह गई मेमोरी, है ना, और वो बाहर नहीं निकली, वो ग्रंथि बन गई, करेक्ट।
जिसकी करेक्ट वजह से वो ग्रंथि एक बनती है तो उसके ऊपर ग्रंथियां बनती रहती हैं, वो लोड हो गया, ओवरलोड हो चुका। तो वैसे ही हम्म आप उसकी बातें सुनोगे ना, तो एक लेयर खुलेगा, दूसरा लेयर, इसीलिए साल 2 साल रेम और खतारसिस ऐसी चीज है, वो साल 2 साल चलती है। मतलब अगर राइट अच्छा रिजल्ट देखना है तो 2 साल लग जाते हैं। तो आप हम्म अपने क्लाइंट के साथ में एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई 1000 रुपीज लेंगे, और अपने बातें बस ऐसे नहीं कि मैं अपने मदर के बारे में बात कर रहे हैं, बस आप हम्म उनकी बात सुनो, फिर आप धीरे धीरे बोलो कि अच्छा, आपके रिलेशनशिप कैसे थे बचपन में मदर के साथ, आप क्या करते थे, आपका कोई हॉलीडे। तो फिर वो धीरे धीरे ना, वो अंदर उसके था ना, धीरे धीरे एक करके लेयर बाहर आने लगेगा। एंड उतने में हम्म वो बंदा, चाहे गुड मेमोरी हो चाहे बैड मेमोरी हो, वो मेमोरी हील हो जाएगी। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, वो जो, अगर बैड मेमोरी भी है ना, वो भी डिलीट हो जाएगी, बिकॉज इट इज आउट, वो उसने वॉमिट कर राइट दिया। हम्म। तो उतने में वो मतलब माइंड उसको डिलीट ही मार देता है। दैट्स द राइट ब्यूटी ऑफ। तो इसका जो आपके क्लाइंट का है, वो ये सोल्यूशन रहेगा, रादर देन यस उनको मोती दो, ये मोती लगा लो यहाँ पे, मतलब ये नहीं काम करेगा। तो एवरी टाइम यू हैव हम्म टू अंडरस्टैंड कि ये 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 कैसे ठीक होगा इस क्लाइंट का ना, तो वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो यस टॉक टू द पर्सन अबाउट द मदर, और एक बार डायरेक्ट बात नहीं होगी, पहले इधर उधर की बातें होंगी कि आपके फ्रेंड्स She कैसे has shared all the inner feelings with me about her mother. हैं। So, I mean, she's quite open. I mean, she wants to talk about her mother. I mean, कुठे कहीं ना कहीं वो pain है उसमें कि, हम्म you know, हम्म because she has a difficult relation with her mother, and that's why she is not, as you have rightly said, in the affirmation, she हम्म doesn't feel supported, and हम्म that is causing a problem with her relation with her husband also, because हम्म she is still not come to terms with her older pattern, as you have said. हम्म You know, she needs to probably understand or accept. तो हम्म। वो acceptance जब तक नहीं होगा, she can't focus on her relation with her husband also. So I got it. I mean, I तो इसका understood पैटर्न now. बिल्डिंग होगा आपका कि Yes. एवरी ट्यूसडे यू हैव टू फिक्स Hmm. अ डेट, एवरी Yes. ट्यूसडे 11 o'clock we will Hmm. do a session of catharsis, that you do Yes. for 1 month, 2 month, 3 month, 3 month दे दो, Hmm. 3 month is a good Hmm. time. And Hmm. every Hmm. Tuesday, if she is not available, you will not Hmm. give her a new time. You will tell her Hmm. next Tuesday only. So, Hmm. because it's moon, let take it Monday. कि भाई मंडे Hmm. मंडे मंडे 5 o'clock, 5 to 6 we will have a session. Hmm. तो एक पैटर्न Hmm. बनेगा। तो उस टाइम Yes. ब्रेन फिर धीरे धीरे वो उनको निकालने लगेगा, डिलीट करने लगेगा। Hmm. गॉट। Hmm. Right. Yes. Thank you. थैंक यू। या जानवी जी। So you talked about Granthis, right? How do you see how do you see like Ida Pingala and Shushumna Nadis making these Granthis? No, no, no. Um, We're you still know, not going to Kundalini. Kundalini is a subject that I will not be taking in Jaya. So ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तो आएगी ही नहीं अभी। yeah, but we're talking about Granthi, so I'm for what the knowledge that I have, that's what I'm asking. That's where this is coming from. Just trying to understand, like you're talking about Granthi. Granthis are obviously built because of the fact that our daily routine life. So हम्म we're trying to change daily routine life basically here, हम्म using Vastu and astrology. हम्म। But ultimately, it's yoga, right? No, there is no ultimate term in the entire universe system, I would say. There is no ultimate thing called as yoga, or whoever practices whatever, they will see that. You will see what you have been practicing. Because Yeah, I that is Sadhguru's thought process, that ultimate is yoga, कि कुंडलिनी, बिना योग किए भी कुंडलिनी राइज हो सकती है, बिना योगा के भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना राइज होती है, just by doing your daily chores, like a butcher, if he is doing his job as a butcher and he is feeding his family, तो भी उसकी सुषुम्ना राइज हो जाती है।
Okay. Yeah. So, So butcher is a judgment that we are doing, but if you see a butcher's profession, that's his profession, and वो अपना action, अपना धर्मा एकदम प्योरली कर रहा है, उसी से वो अपने फैमिली को पैसे कमा के दे रहा है, चला रहा है, तो उसी से उसको मोक्षा है। सो ये जो पुरुषार्थ है ना, अगर इनको आप देखोगे तो ये आप समझोगे कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कैन बी मतलब स्वसरा में आ सकता है विदाउट योग और एनी अदर यू नो kriyas or anything like of that sort. okay. Yes, I understand it can happen, but I'm just saying, given the fact that how the human lives in this day and age, right, with so much confusion about everything in life, right? There is no one set. They But don't have. the confusion has always been there. If you see Mahabharata or even Ramayana, the confusion, the human nature is such that they have always been confused. And it's not that this Kali Yug में किसी को मोक्ष मिलेगा नहीं. That is just a thought process of some Rishi Muni. But there are thought process of other Rishi Muni who says कि कलयुग में तो और easy है. सो यहाँ इस टर्म में अपने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को ग्रंथि में वी आई डोंट वांट टू कनेक्ट. I mean, you don't need to connect. Okay. Thank you. Because even when I did my yoga, I did yoga thinking that I did पूरा कोर्स ना एज अ टीचर, मुझे लगा था योगा से मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा. And after doing yoga and Surya Namaskar, I would do 108 in 45 minutes. मैं संकल्प लेके करती थी. But after being there and realizing that, yoga se is somebody else's thought process, but that's not me. My way of discovering Ida Pingla Shushumna can be different from yoga. Yeah, I mean, because they exist no matter what, right? It's not something that, in my experience, it's not something that you're looking for. It exists in every human, right? It's Yeah, not something. it's there. Of course, it is Yeah, there. that it's just that our days, the way we live our life, which in terms basically blocks all these things, right? It blocks all these small channels. It blocks all the energy system in Mm. humans, Yeah, right? so the blockage could happen because of physical action, because of emotional action, or even mental. Correct. Exactly. So we're just trying to, with the astrology and Vastu, we're just trying to see where these blockages are, basically. Can we say that? Yes, we can say that. We can say that we are just doing a SWOT analysis, seeing our weaknesses through astrology, and also that same pattern you will see that suppose if there is weakness, if the Ketu is in northeast, you will see that there will be some problem as per Vastu in your northeast also, because you come into a house uh, uh, as per the astrology chart also. एंड वहीं Okay. पे आपकी सुषुम्ना या जहाँ पे भी आपकी जो कुंडलिनी है उसी चक्रा पे बैठी होगी, है ना. दिस इज व्हाट आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग. Okay, so the energy functions because wherever the spot where you're sitting at, it the energy is functioning in that zone in that particular time due to the fact that planetary positions are. No. They are planetary positions have brought us to this point, and it is just a way to analyze them. There could be another system to analyze, but since you and me connect with astrology, so we are seeing this system. But Okay. person who is maybe who has a different perspective will not see any of this.
So it is not the ultimate way of seeing patterns. This is just one of the ways of seeing patterns. Yeah, I mean, obviously, because even the psychologists who are trained, they will be able to look at the patterns of human system, right? Yeah, so Uh, every psychologist also sees pattern in a different way. Like Carl Jung saw it in a different way. And uh-huh. these different psychologists have always, they've had their own theories, which is, which works on 50-70%, which doesn't work on 30%. So there is no single rule as such that, you do yoga and then kundalini उठ जाएगी, या you do this तो आपको देवी के दर्शन हो जाएंगे. For example, Swami ji has seen Devi Ma, because he's walked that path. If I want to see Devi Ma with the same japas he has done, I will not be able to see, because my past journey has been different, and that past journey we are seeing with the astrology chart. Okay, got it. Thank you. Thank you. Yeah, Meghna ji. Ma'am, I just want to ask one question that so many times we have seen that a particular person has a strong planet in his chart, but in reality, we see the negative pattern of that planet. So, which one is correct? The chart, which way is correct actually? No, no, no. See, what happens is we are born with some particular pattern. Say, suppose the pattern is XYZ, है ना? So, but that person, and he is born with a weak moon, but that person gets a very loving mother. So, धीरे धीरे उनका moon becomes strong. So, if he's born with that weak planet that we are seeing in the chart, that can definitely change. That is why this whole learning is there, or sadhanas are there, that you can change your astrological pattern completely. And Okay, ma'am. yeah, after a point, the so-called weak planets are not weak anymore. Okay. But if a person has exalted moon, and if he comes and I see negative pattern, like So he's that overthinking ah, or he has, ah, so so that one particular nature is not just judged by one planet. it okay. it has aspect of sun, or it has aspect of Mars, or all these things. Those are aspect things, but here we are not trying to understand, we are just trying to understand this astrology in a new way, by seeing their nature कि अभी करंट नेचर क्या है. करंट नेचर है ओवर थिंकिंग का, यानी कि मून पे काम करना पड़ेगा. मून पे काम Okay. किया तो आफ्टर अ ईयर you will see that overthinking is out of their system. बट फिर कोई Mm-hmm. बोलेगा अरे आपका तो मून वीक है, बोलेगा मून वीक था मेरा, बट मैंने साधना से या अपने साधना डजंट मीन दैट यू हैव टू सिट एंड चैंट. योर Mm-hmm. जस्ट डूइंग एनीथिंग रेगुलरली, लाइक एक्सरसाइज आप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो साधना. आप अपने घर के Mm-hmm. लिए अच्छा खाना बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो साधना. Uh, तो फिर वो चेंज हो जाता है प्लैनेट का जो भी ग्राफ है अपने ब्रेन में. So that is not seen in the Kundli. So Kundli mm-hmm. uh, is also helpful till a particular time. After that, Mm-hmm. Kundli is baseless. इसीलिए तो स्वामी जी ने Okay. 20 साल की उम्र में कुंडली को फाड़ दिया था ना. बिकॉज आई देन ही हैड एक्चुअली रियलाइज कि मैंने इतनी साधना कर ली, अब ये कुंडली मेरे लिए काम ही नहीं करे, मतलब इसमें जो भी दिखा रहा है इट्स बेसलेस फॉर मी. Okay. है ना. तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इज हेल्पफुल टू अ सर्टेन लेवल, नॉट बियॉन्ड. इवन वास्तु इज हेल्प, इट्स लाइक आई सेड ना, इट्स लाइक अ ब्रिज. एक ब्रिज Mm-hmm. पार किया, फिर वो ब्रिज को साथ में लेके तो वी कांट कीप हैंगिंग दैट ब्रिज एंड कीप क्रॉसिंग अदर ब्रिजेस, करेक्ट. वी हैव टू लीव Mm-hmm. दैट ब्रिज देयर एंड देन मूव on with a new knowledge.
अब एस्ट्रोलॉजी नॉलेज एक टाइम तक काम आएगी, उसके बाद नहीं काम आती है. Then you have to again do a new learning. Again, new learning. That's why growth happens, no? Because every time you have to learn something new. नया पहाड़ पार करना होता है. तो I mean, this is what I have realized in last 15 years. And obviously, now with everything matches with what Swamiji says कि हाँ, एक टाइम तक कुंडली काम आएगी, उसके बाद कुंडली को जयराम जी की कर देना है. तो एक टाइम के बाद में आप भी इस क्लाइंट को देखोगे, उसके पर्टिकुलर अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है, उस पे काम करना है. ना कि कुंडली में तो शनि वीक है, मैं तो शनि पे ही काम करूंगा. अरे भाई, उसने शनि अपना ठीक कर लिया दान पुण्य करके, शनि पे नहीं काम करना है हमें. आर यू Okay. गेटिंग द पॉइंट? तो Yes, ma'am. करंट में वो प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उस Hmm. काम करोगे ना, रादर देन प्लान कुंडली में देख के मेरा आपका तो ये वीक है, मैं तो इसी पे काम करूंगा. वी कांट डू दैट. Uh-huh. So this is what is that is why I am bringing these patterns to you, because ये जो कुंडली आपने स्टार्टिंग में सीखा वो नंदा भद्रा लेवल के लिए ठीक था, बट अब जया के Uh-huh. लेवल में आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन कुंडली, यू हैव टू रिलाई ऑन देयर करंट मूल प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उनको प्रॉब्लम प्रेजेंट में क्या आ रही है, वो Uh-huh. समझ के आपको रेमेडी देनी होगी. Okay, ma'am. ठीक है. ठीक है. Thank you. थैंक यू. Yeah, so these affirmations are also good. You can use these affirmations. Pearl is good. Pearl कौन सा है ये, स्मॉल फिंगर में सिल्वर में पहन सकते हैं. पर्ल पिलो के नीचे रख सकते हैं. पर्ल का पानी पी सकते हैं. पर्ल को नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं. तो पर्ल कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज. और मदर को पर्ल गिफ्ट कर सकते हैं. एंड ये पोस्टर इज रियली चेंजिंग लाइव्स. इससे क्या हो रहा है, इसमें मून है, बहुत सारे पर्ल्स हैं, एंड माइंड इज ऑलवेज सीइंग, इट्स रीडिंग माय माइंड इज काम, माय माइंड इज काम. तो कहीं ना कहीं वो धीरे से रियलाइज हो रहा है उस बंदे को, देख देख के, पढ़ पढ़ के, कि हाँ, आई नीड टू वर्क ऑन माय मून, आई नीड टू वर्क ऑन माय मून. तो वो दैट इटसेल्फ इज अ अफर्मेशन, उसको देखना ही अफर्मेशन है. और लाइक आई सेड, माइंड, एवरीथिंग माइंड के लिए सबसे इजी है रेमेडी में कोई इमेज को देख के अपने आप को चेंज करना. तो अब जैसे होता है ना, दे से दैट, अच्छा, हु इज, चिल्ड्रन को बोलते हैं कि हु इज योर व्हाट इंस्पिरेशन पर्सन, हु यू गेट इंस्पायर्ड विथ. सो उसकी फोटो लगा लेते. सपोज द चाइल्ड इज प्लेइंग फुटबॉल, ही वांट्स टू, he will put a picture of Ronaldo, or so it's kind of a motivational thing कि भाई ये लगा लिया, and then you know that you have to work on the moon, and if you work on the moon you will be in clouds, no doubt about it. So this is all about